check. Hey, what is up, people? A very good evening. Let me know if my voice is clearly audible or not. We are starting in less than 10 minutes now. We are waiting for the people to join in. We are expecting more than 5 to 600 people today. It's going to be one of the most important evenings you guys would have ever become the part of in terms of spoken English. What if I tell you that the content, the way we will be teaching you, the way we will be guiding you up, you guys are going to be loving it every second of it. How many of you guys are excited for today? Let me know, guys. Everyone, just enjoy this wonderful music. We are starting in less than 8 minutes now. So quickly, guys, take out your pen and the paper and make sure that you are not leaving this particular Zoom session, because we have limited seats. So the people, those who will be joining, they have to stay till the end, because then only you'll be able to get the entire crux of English language. It's going to be super duper of an evening. 1 hour 30 minutes would be the session. And what if I tell you that these particular 90 minutes is going to be taking your English fluency to the totally new level? How many of you guys face, okay, like before we begin, like let me know your name and from which place you are watching this particular event from. Let me know your name and your event, and I'll take your names, guys. Enjoy the wonderful music. Starting in less than 7 minutes now. That's wonderful. Good evening, guys. Good evening. Okay, so Ankush have joined it. Manish has joined. Rahul has joined. That's wonderful. Suresh has joined. Quickly, guys, everyone, be ready for the mega day 1 today. We are starting in less than 6 minutes now. Be ready. Less than 5 minutes to go.
starting in less than 4 minutes. How many of you guys are excited? Quickly let me know. And I totally understand your pain when you're not able to speak in English, when the other person is expressing their thoughts in English. You guys want to express it, but somehow you are stuck. Your confidence is down. You are nervous. You feel that particular hesitation. What if I tell you that I'm going to take you away from all those things, and the methods, each and everything will be told to you step by step. Just trust the process. 3 minutes to go, guys. I'll be right live in front of you guys. Thank you. I would request everyone to take out your pen and paper. I would request everyone to take out your pen and the notebook, because we will be making some notes so that you can remember the new teachings forever, guys. Thank you. Okay, so who is going to start the countdown with me, guys? Quickly let me know. We are starting in less than 1 minute. So quickly, guys, be ready. Shut all your distractions. And I want that your entire focus should be towards this particular content which we will deliver to you, the strategies, the new methods of the year 2023. We are starting in less than 1 minute now, guys. Thank you. Please be ready. Next time, I'll be live in front of the camera, guys. Thank you so much. Cheers. So, we are starting in less than 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What is up, India? Welcome to the day 1 of English fluency classes. How many of you guys are excited for today? Let me know. My first question, am I clearly audible, visible? Is there any issue with the video or with the audio clip? Let me know. All set? Great. What if I tell you, okay, so I'll start with this particular
By the way, I speak very fast, and the mode of the communication of these particular classes would be mix of two languages. I'll be speaking in Hindi, plus I'll be speaking in English as well. All set. कुछ चीजें मैं हिंदी में बात करूंगा, and there would be certain things which I'll be speaking in English. I hope you guys won't have any problem. And by any chance you don't understand Hindi or English, don't worry. By my actions and by the way I'll be presenting you these slides, you will be able to understand each and everything. Done? All set? So ready for today? Okay. Here, एक simple सी मैं आपको चीज बताऊं. Let me make English fluency. You all are struggling in English, yes or no? How many of you guys are literally totally fed up and you guys are just struggling? You know, you guys are just wandering here and there, going YouTube, Google, and you are still not able to find that how you can become fluent in English. A lot of people, everyone, obviously, that's why you guys are here in these particular classes. Okay, I'll keep it very simple. Look, if I talk about winners and losers, आपको पता है winners and losers दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट बनना चाहते हैं, पर आपको पता है विनर्स क्यों बन जाते हैं, लूजर्स क्यों नहीं बन पाते? बहुत ही एक छोटी सी बात है कि विनर्स को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता होता है एंड लूजर्स को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं पता होता. And this is exactly what I faced in my life when I was struggling in English. I was in my village. I always wanted to become fluent in English. I always wanted to become a public speaker. But as I was struggling in English language ना, तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये अपने बारे में पता है कि योर ब्रेन इज लैकिंग द क्लैरिटी? आपको पता तो है कि इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, बट कैसे होना है? यू गाइज आर टोटली कंफ्यूज्ड. लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर हैविंग द सेम प्रॉब्लम कि भाई पता है इंग्लिश में बात करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, सारी थ्योरेटिकल चीजें पता है, बट व्हेन वी आर अलोन एट होम, जब मैं अपने आप को कमरे में बंद करता हूं एंड एक्चुअली मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू. What if I tell you that in these particular classes, in these particular event, I'm going to solve all your problems of yours and you will see. अच्छा, आपने बचपन में सुना है कि हमारे टीचर्स बोलते थे कि यार हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है, अगर इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश. How many of you guys have heard these kind of lines? What if I tell you that in this particular event I'm gonna show you the जादू की छड़ी? How many of you guys are excited कि जिसको आप घुमाओगे and you all will feel that particular change within 2 days, and that's my guarantee to you. Ready? Excited? Chalo. There are certain people, those who don't know about me. Look, my name is Aman Maskeen and I am going to be your English fluency coach for not just these 2 days but for your entire year. Like इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना नहीं लगता, आज हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. आई एम गोना स्ट्रेट फॉरवर्ड लेटिंग यू नो आई विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड लेटिंग यू नो द न्यू हैक्स कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप वे में घर बैठ के आराम से फ्लुएंट बन सकते हो, सो दैट आप अपने बिजनेस मीटिंग्स में, अपने ईमेल राइटिंग में, अपने कॉर्पोरेट मीटिंग्स में, अपने स्कूल के इंटरव्यूज में, जॉब के इंटरव्यूज में, you all should be confident enough. Ready? So far, we have, like, through the Elite Talkers, we have made more than 7,200 people fluent in English. I'm the founder and the CEO of the Elite Talkers. And why we guys are different? Because यार देखो, एक simple सी बात ये है कि why I'm taking this particular 2 or 3 days event, because how many of you guys are totally bored of learning English? कितने लोग ऐसे हैं जो यार बिल्कुल बोर हो चुके हैं इंग्लिश पढ़ के? राइट? बिकॉज कितने लोग एग्री करेंगे कि इंग्लिश को पढ़ना, स्टडी करना, याद करना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग टू एक्चुअली able to speak in English fluently. That's a totally different thing. Yes or no? So what if I tell you that in these particular 2 to 3 days event, I'm gonna exactly let you know कि आपको fluency के लिए क्या करना है. I'm not a spoken English trainer, by the way. I hate teaching English. How many of you guys would feel very weird that if I say that I hate teaching English? Because मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश पढ़ना एंड याद करना बहुत बोरिंग है, बट अगर हम इंग्लिश को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते रहे, then fluently बात करना, fluently लिखना is very interesting. Yes or no? How many of you guys are with me on this? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वो बोरिंग ग्रामर के रूल्स पढ़ पढ़ के बिल्कुल दिमाग आप लोगों का पक चुका है? I won't be wasting your time on that. So, and these are particular going to be the new strategies of the year 2023. And
बिकॉज अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश अस्त्र का नाम पहले नहीं सुना? मुझे बताओ। अभी हम ये सारी की सारी चीजें और डीप वे में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश अस्त्र हो गया, ब्रेन एंड वाटर टैंक कंसेप्ट हो गया, ताफ प्रिंसिपल हो गया, हु प्रिंसिपल हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग बिल्डिंग, राइट? इफ आई टॉक अबाउट स्मार्ट वोकैबुलरी, इफ आई टॉक अबाउट स्मार्ट वोकैबुलरी हैक्स, एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स का सीक्रेट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जैक्ट रोड मैप बनाएंगे, लाइक यू गाइस विल बी मेकिंग एंड प्रैक्टिसिंग विद मी, किस तरीके से करना है, कितना करना है। I'm going to let you know each and everything. So don't worry. I totally understand your problems, but just trust this particular event and you're going to get answers to all your questions. And by the way, these particular strategies have been recognized by Josh Talk. I'm twice a Josh Talk speaker. Ask the Indian news, from Bollywood, from Malaika Arora to Mandira Bedi to Irfan Pathan. We have been associated with the Bollywood and even the Indian fraternity. But the point is, I'm here to tell you द स्मार्ट कट्स। कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश के स्मार्ट कट्स जानना चाहते हैं? मुझे बताओ। So I'm not here to, like, don't listen to me because of the achievements, but listen to me because of what I will be letting you know. चलो, बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करें। रेडी? सब लोग सेटल्ड हैं, डिस्ट्रैक्शंस क्लोज कर दी। अब सबसे पहले लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट वी विल बी डूइंग। लुक, इन दीज पर्टिकुलर 2 days ना, दे आर गोइंग टू बी सर्टेन थ्योरी टॉपिक्स, राइट? कुछ मैं आपको थ्योरेटिकल चीजें बताऊंगा बिकॉज माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट, राइट? एंड द सेकंड थिंग वुड बी the practical part, that practical part, the exactly same thing which I have written. So एक बात ना बहुत ही मैं straight forward. Okay, now first of all let me go through these particular points that what exactly we will be covering. First of all, I will let you know that fluency is not what you think. आप में से बहुत लोग fluent होना चाहते हैं, but what if I tell you that the way you think about fluency, आपको लगता है fluency मतलब लगातार बोलना, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको फ्लुएंसी को एक नए पर्सपेक्टिव से दिखाऊंगा, because once you change your mindset towards fluency, automatically you will start speaking in English. The next thing would be, what should be your first step? बहुत सारे लोगों को अपने लेवल के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट स्टेप नहीं पता होता। कभी वो लेवल ओरिएंटेड प्रैक्टिस उनके बारे में उनको पता नहीं होता कि उनको अपने लेवल के अकॉर्डिंग क्या प्रैक्टिस करनी है। वी गोना टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एंड जितने भी 2023 के न्यू मेथड्स हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए, इंग्लिश असरताफ प्रिंसिपल, डी टेक्निक, सेंस एंड अप्रोच, ईएसपी, प्लस द वोकैबुलरी हैक्स एंड सीक्रेट, एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स का सीक्रेट कि वो लोग कैसे इतना जल्दी फ्लुएंट हो जाते हैं। वी गोना कवर ऑल दीज थिंग्स, प्लस हाउ टू स्टार्ट अ सेंटेंस एंड अ कॉन्वर्सेशन। कितने लोगों का वो पेन पॉइंट है कि यार हम इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं, इंग्लिश लिखना तो चाहते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। टुडे ओनली आई लेट यू नो दैट हाउ, व्हाट इज गोइंग टू बी द हैक। एंड ये सारी की सारी चीजें वी गोना कवर इट इन 2 days। डन? कुछ चीजें आज इन, कुछ चीजें कल। डन? क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग वुड बी, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ऑडियो क्लियर है? ग्रेट। नाउ हाउ टू स्पीक एंड राइट विथ जीरो एरर्स। कुछ लोग बात तो करते हैं, लिखते तो हैं, पर इतना ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाता है कि वो लिखना ही छोड़ देते हैं, राइट? है ना? नाउ द नेक्स्ट एंड द डी थिंग वुड बी, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट 7 to 8 वीक्स। आपका 7 to 8 वीक्स की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इंग्लिश को किस तरीके से करना है। प्लस आई विल आल्सो बी सिलेक्टिंग 40+ स्मार्ट स्टूडेंट्स, जो भी लोग इस इवेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, we're going to give them the scholarship also, like in our English fluency automation program. Done? This is done. एक चीज तो मैं आपको clear hesitation से बता देता हूं, like let me be very frank that in these particular 2 days क्या आप लोग fluent बन जाओगे? The answer is big no. The answer is no. बिकॉज अगर इंग्लिश बोलना इतना ज्यादा आसान होता तो अभी तक मैं पूरे इंडिया को फ्लुएंट बना चुका होता। आपको पता है हमारा एलीट टॉकर्स पूरे इंडिया को फ्लुएंट बना चुका होता। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि in these particular 2 days I'm gonna change your entire perspective। perspective समझते हो आप लोग? मैं आप लोगों का जो इंग्लिश को देखने का नजरिया है वो इस तरीके से चेंज कर दूंगा, क्योंकि अभी आप सब लोगों के दिमाग में ना इंग्लिश इज लाइक अ नाइटमेयर। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस थिंक इट्स अ नाइटमेयर? मुझे बताओ कितने लोगों को इंग्लिश नाइटमेयर लगती है? इस आप मुझे अपने 1 hour 30 minutes दो एंड आपको पता चलेगा English is just a step-by-step process. That's it. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, right? You guys are already doing great. You might be a student, advocate, lawyer, doctor. You might be anything. But आपने अपने लाइफ में कुछ भी अचीव किया है अगर, obviously that is step by step. So that those are the exact steps I'm gonna let you know. So एक चीज मैं ऑनेस्टली आपको बता देता हूं कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप लोग मेरे साथ चलना, एंड दैट्स गोइंग टू बी ग्रेट। एंड दिस पर्टिकुलर इवेंट वुड बी
of 1.5 hours, around 90 minutes का होगा. So just be with me. And today it would be from 6:45 till 8:20 p.m. Kal it would be from 6:45 to 9 p.m. And from day 3 onwards we're gonna start doing the practical part. हम यहाँ पे कुछ चीजें practical करेंगे, theoretical करेंगे, but from day 3 onwards everything is going to be practical. Now start करें. Here we go. Someone is saying this particular session is not live. The point is this particular session is absolutely live. How many of you guys think it's live? Right? Obviously it's live. Now, अब यार एक सबसे बड़ा start करें session. Clearly audible. फटाफट guys, now my rate of speech is going to be very high. Right? आप एक भी चीज को afford नहीं कर सकते miss करना. अब मेरे साथ चलना. सबसे बड़ी गलती which people make. How many of you guys want to know the 5 best ways to become master, like fluent in English and all that? आपको पता है ये जो ये है ना question, 5 best ways to master spoken in English. आपको पता है, according to me and according to us, इस दुनिया का इंग्लिश लैंग्वेज के दुनिया का ये सबसे बेकार क्वेश्चन है. कितने लोग एग्री करेंगे कि इस क्वेश्चन ने कभी किसी का हेल्प नहीं किया? रीड न्यूज़पेपर कर लो, शीशे के सामने बात कर लो, राइट, यूट्यूब वीडियोस देख लो, इससे ज्यादा हम आगे बढ़ ही नहीं पाए. ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश मूवीज देख लो. व्हाट एल्स वी गेट इन दिस? What else we get in this? But what if I tell you that today I will let you know that what and how you need to do it. But उससे पहले ना, I would love to check your level. आप सब लोगों को अपना level पता होना चाहिए. Like someone has commented that practice is important. But what if I tell you that practice is useless? The point is practice is useless. Because if we are not doing the right practice as per our level, apart from this, anything else you do is useless. Yes or no? अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पर वो मेरे लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है तो उस प्रैक्टिस का क्या फायदा? सो दैट इज द रीजन. आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है वो तो मैं बताऊंगा, बट नोइंग योर लेवल इज गोइंग टू बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. लुक, एज ऑफ नाउ कितने लोग इस पिक्चर से कनेक्ट कर पा रहे हैं? आप में से कितने लोग इस पिक्चर से कनेक्ट कर पा रहे हैं that when you speak you have a lot of fear, hesitation, fumbles, cluttered mind goes blank, words don't come and stuck out. And जब हमारी ये प्रॉब्लम होती है ना, you know what we do, जब हम इतने कंफ्यूज होते हैं ना, हमें लगता है कि we have to become what, हमें लगता है यार इतनी ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है एंड मुझे तो इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होना है, राइट? सो व्हाट डू? वी टेक दिस पर्टिकुलर रोड. कितने लोग एग्री करते हैं कि हम सब लोग इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहते हैं एंड फ्लुएंट बनने के लिए these are the 5 or 10 best ways? Yes or no? सब लोग इसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ना. This is what we have been taught in schools, this is what we have been taught in colleges कि यार अगर इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है, अगर आप लोग अभी यहाँ हुए ना, अगर हमें कॉन्फिडेंट जाना है, ये मैं आपके ब्रेन की पिक्चर बना रहा हूँ. This is exactly what you guys think कि यार मैं रीड न्यूज़पेपर्स कर लेता हूँ, इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स, रिमेंबर और मेक ऑफ नोट्स ऑफ ग्रामर रूल्स, एंडलेस यूट्यूब वीडियोस देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ. थिंक इन इंग्लिश, लोग हमें कह देते हैं कि थिंक इन इंग्लिश करो, राइट? एंड वी ऑलवेज वेट फॉर इंग्लिश एनवायरनमेंट. कितने लोग ऐसे हैं जो इन सब तरीकों से बोर हो चुके हैं? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस थिंक दैट दीस पर्टिकुलर थिंग्स आर टाइम कंज्यूमिंग? लेट मी नो. समवन राज इज सेइंग कि यार ये मैं सारी चीजें कर चुका हूं, बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं है. यस. सो गाइस, सबसे पहला इस इवेंट का वाओ मोमेंट, मैं आपको इन सब चीजों में बोर नहीं करने वाला. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर टोटली जस्ट आई वाओ यार, ये सही है, राइट? अभी तक हम यही सुनते आए थे, ये चीजें नहीं करनी. What if, like, how many of you guys are feeling, wow, yeah, this is new, right? ये चीजें नहीं करनी. Now the point is, शुक्र है खुदा का. Dennis is typing शुक्र है खुदा का. Now, यार देखो होता क्या है कि we think that if we are here and we need to reach to the confidence part, these are the exact things which we need to do. But ये जो strategies है ना, ये these strategies are just like black zone समझते हो कि हमें लगता तो है कि हम improve हो रहे हैं, पर हम कभी भी इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते. Yes or no? This is what it is. हमें रोज लगता है कि मैं कल हो रहा हूँ फ्लुएंट, नेक्स्ट वीक हो रहा हूँ, I am about to become fluent in English, but the answer is we are not reaching here. What if I tell you now the concept of English Astra is going to blow your mind off? Now welcome, आप सब लोगों का स्वागत है इंग्लिश की नई दुनिया में. Here you go. What if I tell you that as per the English Astra ना, आपको पता है जो लूजर्स होते हैं ना, उनके लिए दिस इज द पाथ. उनको लगता है हमें कोई 5 बेस्ट वेज देगा एंड मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा. नो, this is not what you need to think. Now in this new era of English language, let's change certain patterns. What if I tell you कि अगर आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होना है ना, there is a very easiest step by step way
First you need to go here, you need to attain this particular level. आपको पहले ये चीज अचीव करनी है, then you can step by step reach to the confidence level, and this thing is known as English Shastra. आया समझ में? सिंपल सी बात, राइट, सिंपल सी बात ये है कि अगर कॉन्फिडेंस के तरफ डायरेक्टली भागेंगे, आज तक आया कॉन्फिडेंट? नहीं आया. एवरी टाइम यू गाइस हैव गूगल्ड, यूट्यूब, यू गाइस हैव ऑलवेज वंडर्ड हाउ यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश. आज तक आया कॉन्फिडेंस? मुझे बताओ, हाँ या ना में जवाब दो. यू गाइस हैव ऑलवेज चेज कॉन्फिडेंस, यस और नो? आप सब लोगों ने हमेशा फ्लुएंसी को चेज किया, आज तक आई फ्लुएंसी? नहीं आई. बिकॉज अभी तक आप वो कर रहे थे जो आप चाह रहे थे, आपको वो करना है जो फ्लुएंसी चाहती है. नाउ व्हाट इफ आई टेल यू दैट इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इंग्लिश अस्त्रा, एंड ये लेटेस्ट कंसेप्ट है 2023 का, व्हिच वी एलीट टॉकर्स हैव डिजाइन. इसमें एक सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस तक पहुंचना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीच दिस लेवल. इस लेवल को पहले आपको अचीव करना पड़ेगा, then only you can reach to the confidence level. Now the question is, what is this level? एक सिंपल सी बात ये है कि हमें अपने फ्लुएंसी के गोल को दो गोल्स में ब्रेक कर देना है. गोल नंबर 1, the goal number 2. Now the question is, what is this goal number 1? Up. This is what the concept of known as English, English Astra. Ready हो? कितने लोग धमाके के लिए रेडी हैं? Let me know. How many of you guys are ready for the dhamaka of learning English? चलो, here we go. You know the point is, अब आप सब लोग इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हो? ग्रेट. लेट्स डू एन एक्टिविटी. सब लोग मुझे ना फ्लुएंसी का मीनिंग बताओ. आप लोगों के लिए फ्लुएंसी का क्या मतलब है मुझे बताओ फटाफट. लेट्स स्पीक डायरेक्टली. सब लोग फ्लुएंट होना चाहते हैं ना इंग्लिश में. आप लोगों के लिए फ्लुएंसी क्या है मुझे वर्ड्स में बताओ. एंड आई डोंट नीड, ओके, समवन इज सेइंग राइट वर्ड्स. हु एल्स? समवन इज सेइंग परफेक्ट इंग्लिश, समवन इज सेइंग क्विक, someone is saying talk without disruptions, saral or fast, okay, speak clearly, talking without hesitation, talking with confidence, okay. Batao everyone quickly, let's participate in this particular event quickly guys. Without pressure bolna, okay. Speak English like you, okay, got it. What else? Without any fumble, okay. Rajat, can you please close the chats now? Chats close. Guys, आपने एक चीज नोटिस की कि हम सब लोगों का एक गोल है, दैट इज फ्लुएंसी. बट हाउ स्ट्रेंज इज इट कि हम सब लोग फ्लुएंसी के बारे में अलग अलग सोच रहे हैं. ये कितनी अजीब बात है ना. गोल तो सेम है, फ्लुएंसी के बारे में सोचा अलग अलग जा रहा है. एज हम फ्लुएंसी के बारे में अलग अलग सोच रहे हैं, तो हम अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम अपने राइट गोल की तरफ पहुंच ही नहीं पा रहे. नाउ the point is very simple. Rajat, are you there? Can you please close the chats, Rajat? Rajat, can you please close the chats? Now, the most important thing. Here we go. Okay, Rajat is not available, so I need to close the chats. Give me one quick minute and we're gonna... Okay, am I clearly audible? मुझे बताओ. Right? मैं clearly audible हूँ? Great. Wonderful. Okay, now let me close the chats. Thank you guys. Thank you. Here we go. Chalo, chats would be closed now. Guys, what if I tell you कि तुम लोगों को जो भी लगता है ना फ्लुएंसी के बारे में, आई एम सो सॉरी. मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि वो गलत लगता है, but that is incomplete. Today I'm going to let you know the exact meaning of fluency. And once you know the exact meaning of fluency, आपको अपना step by step पूरी की पूरी जो fluency की image है वो clear हो जाएगी. And here we go. Look, सबसे पहली चीज तो fluency का मतलब ना लगातार बोलना नहीं होता. Lot of people think कि fluency का मतलब ये होता है कि लगातार इंग्लिश में बात करना. But what if I tell you that fluency has two parts. फ्लुएंसी का मतलब होता है ढंग से लिख पाना एंड बोल पाना दोनों. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री? है ना, सिंपल सी बात ये है. फ्लुएंसी किसने बोला कि फ्लुएंसी का मतलब लगातार बोलना होता है? ढंग से लिखना भी तो फ्लुएंसी का मतलब हुआ. नाउ लेट मी मेक इट कंप्लीट. फ्लुएंसी अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू द एलीट टॉकर्स, एंड आई होप आप सब लोग एग्री करोगे, एंड आप लोगों के लिए भी यही मीनिंग होना चाहिए. फ्लुएंसी इज द एबिलिटी टू राइट एंड स्पीक, क्योंकि आप लोग दोनों ही अपना इंप्रूव करना चाहते हो, द रिटन पार्ट एज वेल एज द स्पोकन पार्ट. फ्लुएंसी इज द एबिलिटी टू राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश. ऑब्वियसली सही होनी चाहिए. तुम में से कोई गलत बोलना चाहता है क्या? आई डोंट थिंक सो. फ्लुएंसी इज द एबिलिटी टू राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश, दैट टू क्विकली विद कॉन्फिडेंस. दिस इज द करेक्ट सेंस. आप सब लोगों के दिमाग में एक ही सोच जानी चाहिए, एंड दैट शुड बी दिस. And if I open up the chat box, आप लोग मुझे बताओ कितने लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं.
आपको फ्लुएंसी में जो कुछ भी चाहिए, यू वांट टू राइट प्रॉपरली, ग्रेट, यू वांट टू स्पीक प्रॉपरली, ग्रेट, आप लोग करेक्टली भी बोलना चाहते हो, प्लस आप जल्दी से जल्दी, क्विकली एंड विद कॉन्फिडेंस, यस और नो, हो गया, कवर अप हो गया जो भी हमारा गोल है, यस और नो, बिना रुके बोलना। दिस इज लाइक अ बच्चों वाली डेफिनेशन कि मुझे क्या चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, दैट्स नॉट द वे। वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। मैंने बोला ना कि आंखें हमें खोलनी है, दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग फॉर। नाउ मूविंग अहेड, हियर वी गो। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू, यहाँ पे ना अराउंड 6 वर्ड्स मैंने यूज किया, अराउंड 5 वर्ड्स यूज किए, 1 2 3 4 5, राइट, स्पीक, क्विकली, कॉन्फिडेंस एंड करेक्ट। अब ना आप लोग मुझे एक बात बताओ, लेट्स प्ले वन मोर गेम। आउट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स, राइट, स्पीक, क्विक, कॉन्फिडेंस, करेक्ट, इन पांचों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए क्या है? मुझे बताओ, सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लेट मी नो व्हाट इज दैट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको लगता है कि आपके पास अगर वो नहीं हो, आप लोग इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं बन पाओगे। लेट मी नो, let me know. No, all is not the answer. If I'm asking one, you need to be very specific in terms of your answer. Let me know. Let me know what's the one thing which you guys 100% need. Let me know. A lot of people are saying confidence. अभी ना आप लोगों के आंसर्स में ही आप लोगों के इंग्लिश में फ्लुएंट ना हो पाने का रीजन छुपा हुआ है, राइट? बिकॉज हमें पता ही नहीं है, हम लोग ब्लाइंडली इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दैट्स नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग। फटाफट मुझे बताओ। ओके, चैट्स क्लोज। रजत, आर यू देयर? क्लोज द चैट्स नाउ। हियर वी गो। यार पहली चीज तो ये है, आई एम सो सॉरी टू लेट यू नो, थोड़े लोगों का दिल टूटेगा। आई एम सो सॉरी टू लेट यू नो कि जिसने भी आंसर कॉन्फिडेंस दिया है गलत है, क्विक दिया है गलत है, राइट एंड स्पीक दिया है, आई एम सो सॉरी, द आंसर इज रॉन्ग। व्हाट इफ आई टेल यू कि इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है, एंड दैट इज करेक्ट? यार एक सिंपल सी बात ये है, राइट, एक सिंपल सी बात ये है। अच्छा, आप में से सब लोग इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, ग्रेट। क्या हमने कभी ये चीज नोटिस की है कि हम किसी भी चीज को करने के लिए कॉन्फिडेंट कब फील करते हैं? हम कॉन्फिडेंस किसी भी चीज को करने का तब फील करते हैं जब हमें पता हो कि हम लोग करेक्ट हैं। यस और नो? कितने लोग एग्री करेंगे? बात सही है ना? सिंपल सी बात यही है। अगर आप और आप में से अभी मैं आप लोगों को बताऊं ना, आप में से अराउंड 95% पीपल आर नॉट करेक्ट इन इंग्लिश एज ऑफ नाउ। यस और नो? 95% people are struggling in India in terms of being correct in English. That's the only reason why we are not able to feel the confidence यार। हम लोग ना बिल्कुल मैडली क्विकनेस एंड कॉन्फिडेंस के पीछे भागते रहते हैं, पर हमें क्विक एंड आज तक आप लोग कॉन्फिडेंस क्यों नहीं फील कर पाए? क्योंकि जब भी आप इंग्लिश बोलने लगते हो, whenever you try to speak in English, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। आप ही अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हो, क्योंकि आपको पता है, आपके दिमाग को एंड आपके हार्ट को पता है कि आप जो भी बोल रहे हो वो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। यस और नो? यही एक मेजर पेन है कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए। यस और नो? कितने लोग इस एग्जांपल से रिलेट कर पा रहे हैं मुझे बताओ? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस तब आएगा जब मुझे, अच्छा, जब बोलने की बारी आती है कि हाय माय नेम इज अमन, कितने लोग, सब लोग अपना नाम इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं, हाय माय नेम इज अमन, माय नेम इज रितु, माय नेम इज प्रिया, माय नेम इज हरमनप्रीत। यस और नो? क्योंकि मुझे पता है ये लाइन सही है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, लुक गाइस, यू ऑल आर मैच्योर इनफ, राइट? एंड अब आपको अगर सच में इंग्लिश में फ्लुएंट होना है तो यू जस्ट नीड टू यूज अ लिटिल ब्रेन ऑफ योर्स। आपको ब्लाइंडली कोई भी कह रहा है 5 बेस्ट वेज, उसको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है यार। हम एक छोटा सा अपना बेसिक दिमाग लगाना, एक 6 क्लास का बच्चा भी इसको समझ सकता है। कैसे? हियर वी गो, एंड नाउ आई विल शो यू अप इंग्लिश शस्त्र क्या कहते हैं। आपको पता है, एज पर दी इंग्लिश शस्त्र, यहां से ना एक चीज और भी डिसाइड हुआ है। जैसे हम लोग कार ड्राइविंग करते हैं ना, तो कार ड्राइविंग इज नॉट वन स्किल, इट इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी स्किल्स। ब्रेक लगाना, रेस देना, स्टीयरिंग को संभालना। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट फ्लुएंसी, फ्लुएंसी को भी ना लेट्स ब्रेक इनटू 3 पार्ट्स। फ्लुएंसी को लेट्स ब्रेक इनटू 3 पार्ट्स, क्योंकि जब तक हम स्टेप बाय स्टेप फ्लुएंसी को अचीव नहीं करेंगे, यार देखो एक सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि तुम कुछ करोगे और पहले दिन से ही तुम कॉन्फिडेंटली यू विल बिकम अ पब्लिक स्पीकर, आई एम सो सॉरी, आप लोग बहुत ही ज्यादा अपने आप को एक फुलिश वर्ल्ड में रख रहे हो। ऐसा नहीं होता। ऐसा हो सकता है क्या कि कुछ आपने पढ़ा और एक ही बारी में तुम पब्लिक स्पीकर बन गए एंड यू ऑल हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश फ्लुएंटली? नो, द आंसर इज नो। सो द स्टेप बाय स्टेप वे क्या होगा, पहले हमें अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है,
क्योंकि आधे लोग तो करेक्ट ही नहीं है। 80% पीपल आर नॉट करेक्ट। अभी मैं पोल करूंगा, आप लोग देखना खुद। हमें पहले अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है, फिर अपने स्पीड पे काम करना है, तभी तो हम कॉन्फिडेंस डिजर्व करते हैं। आया समझ में? दिस इज द एग्जैक्ट वे विच इंग्लिश अस्त्रा सेज। यार इंग्लिश अस्त्रा भी एग्जैक्टली यही कहता है कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तो जो लोग डायरेक्टली के सपने देख रहे हैं वो फिर सपने ही देख रहे हैं। यस और नो? अभी तक हमारी यही प्रॉब्लम थी। कितने लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं? हम लोग डायरेक्टली कॉन्फिडेंट स्पीकर के सपने देख रहे हैं। वी नीड टू फेस द रियलिटी नाउ। सो द पॉइंट इज, हम कैसे अचीव कर सकते हैं? सबसे पहले हमें करेक्ट होना है, फिर हमें अपनी स्पीड पे काम करना है, and then only we can achieve this particular goal. मजा आया? How many of you guys have never understood language like this way? At least ये हमारे 5 best ways to master spoken English से तो अच्छी है। Yes or no? जहां पे अगर मैं आपको एडवाइस देता, लिसनिंग कर लो, रीडिंग कर लो, इंग्लिश मूवीज देख लो, एटलीस्ट उससे तो अच्छा है। यस और नो? एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई वी आर एबल टू मेक मोर देन 200 पीपल फ्लुएंट इन इंग्लिश एवरी वीक। हम 200 से ज्यादा लोगों को इंग्लिश में फ्लुएंट बनाते हैं हर हफ्ते। मतलब एक हफ्ते में नहीं बनाते, मतलब वो 1-2 महीने हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, देन दे बिकम। समवन इज सेइंग 100% रिकॉर्डेड क्लास। अब ये मैंने पढ़ लिया तो तेरे बात का क्या वैल्यू रह गया? समवन इज सेइंग इट्स 100% है क्लास रिकॉर्डेड। अब ये बात मैंने पढ़ ली तो तेरा लाइफ का एजम्पशन ही गलत है रे। इंग्लिश पे ध्यान दे, क्लास रिकॉर्डेड है या क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, राइट? तू क्यों क्यों हार जाएगा बच्चे? अच्छा टाइम बता दूं, टुडे इज 7th of July, राइट? सो द पॉइंट इज, बस हो गया, लाइफ का तेरा तजुर्बा खत्म हो गया। क्यों? इंग्लिश पे ध्यान देना। लाइव रिकॉर्डेड पे इसने अपना आधा घंटा वेस्ट कर दिया। कम ओवर हियर नाउ। अब guys, you need to understand, देखो, the first funda is you all want fluency। अगर तुम लोगों को फ्लुएंसी चाहिए ना, तो तुम्हें वो नहीं करना जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो करना है जो फ्लुएंसी चाहती है। सो द सिंपल फंडा इज, रजत प्लीज क्लोज द चैट्स, people are getting distracted. So the simple funda is, if you will give 100% efforts to become correct in English, अगर आप अपने इंग्लिश को करेक्ट करने के लिए 100% एफर्ट्स देते हो, उसके बाद अगर आप अपनी इंग्लिश को क्विक एंड कॉन्फिडेंस के लिए 30% भी एफर्ट्स दोगे ना, आपको पता है यू विल बी एबल टू अटेन द फ्लुएंसी, बिकॉज दिस इज व्हाट फ्लुएंसी वांट्स। दिस इज व्हाट फ्लुएंसी वांट्स। पर हम लोग क्या करते हैं? हमें उसकी परवाह नहीं है कि जो फ्लुएंसी चाहती है, हम लोग परवाह करते हैं जो लोग हम चाहते हैं, राइट? एंड व्हाट डू वी गाइस डू? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी इंग्लिश को करेक्ट करने के लिए बिल्कुल जस्ट 30% एफर्ट्स देते हैं, उसके बाद तुम अपनी इंग्लिश को क्विक एंड कॉन्फिडेंस के लिए, जो अभी तक आप लोग कर रहे थे, 30,000% भी आप एफर्ट्स दोगे ना, यू विल नॉट अटेन द फ्लुएंसी। कितने लोग इस चीज को, राइट, ठीक है, कितने लोग इस चीज को डीपली समझ पाए हैं? गाइस, पढ़ा तो मैं दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें यह सीखना है पढ़ना क्या है। पहले दिमाग खुलता है, उसके बाद ज्ञान अंदर जाता है। लॉट ऑफ पीपल आर वेरी हंग्री अबाउट कि ज्ञान दो ज्ञान दो, बट पहले ज्ञान के लिए यू नीड टू बी एलिजिबल। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको समझ में आया? दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। पर आप लोग जब तक ये चीजें करते रहोगे, you will not get fluency। कितने लोग यही वाली मिस्टेक कर रहे थे, मुझे बताओ? दिमाग खुला, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। This is what you need to do because this is what fluency wants। एक funny example दूं, let's suppose you are a boy, right? ठीक है, और आप लोगों को एक गर्ल को इंप्रेस करना है। तो अगर हमें किसी को इंप्रेस करना है, तो उसके बर्थडे पे आप वो गिफ्ट नहीं दोगे जो आप चाहते हो, आप वो गिफ्ट दोगे जो उस गर्ल को पसंद होगा। सिंपल। आया समझ में? तो आपको अगर फ्लुएंसी चाहिए तो यू नीड टू डू व्हाट फ्लुएंसी वांट्स। एंड एक एग्जांपल मैं माइंडसेट और देता हूं, ठीक है? यार देखो, लॉट ऑफ पीपल जस्ट टॉक अबाउट कि यार, कुछ लोग ना इस तरीके से बातें करते हैं, क्या यार, अगर इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, बस ज्यादा से ज्यादा बोलो और हम फ्लुएंट हो जाएंगे। यस और नो? कितने लोगों ने पीस ऑफ एडवाइस पहले सुनी हुई है कि अगर मैं बोलूं, अरे इंग्लिश में बात करनी है, ज्यादा से ज्यादा बोलो और तुम लोग फ्लुएंट हो जाओगे। बुलशिट। मैं आपको बताता हूं व्हाट्स द सिनेरियो बिहाइंड इट। लेट्स सपोज आप लोग मुझे एक बात बताओ, मुझे ना वाटर चाहिए, आई नीड वाटर। आई वेंट टू किचन, आई ओपनड अप दिस पर्टिकुलर टैप। यार पानी ना 2 मिनट आया, फिर पानी आना बंद हो गया, राइट? 2 मिनट पानी आया, पानी आना बंद हो गया। क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है? पानी आया 2 मिनट, फिर बंद हो गया। क्या रीजन हो सकता है? ऑब्वियसली वाटर टैंक इज एम्प्टी, या हो गया एम्प्टी। यस और नो? कि पानी नहीं है। एंड नाउ व्हाट इफ आई टेल यू दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर। अगर मैं आप लोगों की प्रॉब्लम फेस, अगर मैं समझू ना, कितने लोग एग्री करेंगे? लेट्स सपोज दिस इज माय ब्रेन,
And let's suppose this is my mouth. Let's suppose this is my mouth. आप में से बहुत लोग ये वाली प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि तुम 2 मिनट तो इंग्लिश में बात किया तुमने, उसके बाद तुम अटक गए। बिकॉज आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि इंग्लिश का जो राइट नॉलेज है वो आप लोगों के दिमाग में है ही नहीं। यू फील अंडर कॉन्फिडेंट, यस और नो? कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एबल टू कनेक्ट विद इट? फर्स्ट ऑफ ऑल यार, इंग्लिश सीखने से पहले ना इंग्लिश एंड लैंग्वेज के लॉजिक समझने इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें टेंसेस तो कोई भी पढ़ा लेगा, यूट्यूब भरा हुआ है, पढ़ लो जितना मर्जी, पर पढ़ने से इंग्लिश नहीं आती ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। पहले दिमाग खोलो, दिमाग में हमें सही चीजें डालनी है। लॉट ऑफ पीपल जस्ट फोकस अपॉन आई वांट टू स्पीक, आई वांट टू स्पीक, आई वांट द इंग्लिश एनवायरनमेंट, बट दैट्स नॉट द वे। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि तुम लोग कैसे करेक्ट हो सकते हो, सो डोंट वरी अबाउट इट। कितने लोगों को मजा आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर लिटरली एंजॉयिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट? लेट मी नो। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर गेटिंग अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव? देखो अब क्या होने वाला है, मुझे ना विद इन 5 या 10 मिनट्स में आप लोगों को करेक्ट कैसे होना है वो भी बताना है। तो फटाफट इस चीज को मैं खत्म करता हूं एंड देन वी गोना मूव फॉरवर्ड। एंड इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एंड कुछ लोगों, भाई ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है। कुछ लोगों को ये लगता है कि यार मेरा ब्रेन चाहे खाली रहे, ये मेरा ब्रेन है, मैं लगातार ऐसे बोलूं। ये चीज पॉसिबल है क्या? मुझे बताओ, ये बताओ ये पॉसिबल है क्या कि ब्रेन तो खाली है पर टैप में पानी बिल्कुल अच्छे से आता रहे? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। दिस इज नॉट द वे यार। पहले दिमाग भरो फिर मुंह से निकलेगा, टैंकी भरो पानी तभी निकलेगा। एज सिंपल एज दैट। नाउ यार, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, लुक ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस वे। फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू स्पीक एंड राइट। हम स्पीक करते हैं माउथ से एंड हैंड से। जस्ट इमेजिन द केस दैट दीज आर जस्ट लाइक टैप्स। तो इन टैप से द इंग्लिश विल ओनली कम आउट व्हेन इन माय बीकर और इन माय ब्रेन द वैल्यू वुड बी देयर। तो ये कुछ लोग, ये दिस इज यू। कितने लोग एग्री करेंगे दैट दिस इज योर मेजर प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है, आया समझ में? वही बात रिपीट है बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। हमारा गोल क्या होना चाहिए? क्या अब हमारा गोल सिर्फ टैप खोलो टैप खोलो टैप खोलो में होना चाहिए? मुझे बोलना है, बोलना है भाई, पहले समझ तो। बिकॉज रिमेंबर गाइस कि एक ना बहुत अच्छी सी हिंदी में कहावत है कि बच्चा 2 साल में सीख जाता है कि बोलना कैसे है, पर हमें जिंदगी लग जाती है ये सीखने में कि बोलना क्या है। रिमेंबर इट ना? सो ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये तो टैप्स हैं, टैप्स का कसूर नहीं है। लोग बस ये बोलते हैं मैं बोल नहीं पा रहा, मैं बोल नहीं पा रहा। द ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी द राइट वे। इतना आया, अब और मोटिवेट नहीं करूंगा। आई विल बी नाउ टेकिंग यू टू द एग्जैक्ट स्टडी मटेरियल्स। डन? मोटिवेशन हो गया? डन? आया समझ में? नाउ मूविंग अहेड। अब एक सिंपल सी बात, ये चीज पता लगती है, चलो एक बारी और समझ लो कि अगर आप लोग अभी करेक्ट नहीं हो ना, तो पहले हमें करेक्ट होना है ताकि मैं अपने वाटर टैंक को फिल कर लूं। उसके बाद मैं फास्ट एंड कॉन्फिडेंट होऊंगा। इन कॉन्फिडेंस होने के बाद ही, लाइक जब मैं ऑब्वियसली ओपन करूंगा अपने टैप को, सो दिस इज रिलेटेड टू दैट। बट कुछ लोग क्या करते हैं, उनको सिर्फ बोलने का शौक होता है, सिर्फ उनको कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है। लाइक दिस इज द ब्लैक जोन ना यार। कितने लोग यहाँ पे 5 से 6 साल में अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं? दिस इज नॉट व्हाट यू नीड टू डू। अब आप लोगों का इसी चीज से एक लेवल डिसाइड हो गया। इंग्लिश को लेट्स ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। इंग्लिश को 2 टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं। जल्दी क्या है? जिसको जल्दी है वो आज तक कुछ अचीव कर पाए, राइट? कितने बारी आप लोगों ने अपने यूट्यूब गूगल पे वो टाइम वेस्ट किया कि 10 दिन में फ्लुएंट बने? हो पाए? हो पाए? मुझे आंसर दो ना। एंड आई एम नॉट सेइंग यार, देखो एक चीज और भी है कि जब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ना ये चीजें, सो आप ये मत समझना कि मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूं या बिलिटल कर रहा हूं। ये सारी मिस्टेक्स मैं खुद कर चुका हूं। मैं खुद भी यूट्यूब पे अपना, मैं ये तो नहीं बोलूंगा टाइम वेस्ट कर चुका हूं, बट मैं काफी कंफ्यूज था कि मुझे कोई बता देता था कि रीडिंग कर लो, मैं रीडिंग कर रहा हूं पर इंप्रूवमेंट तो आ ही नहीं रही। इंग्लिश मूवीज देख रहा हूं पर इंप्रूवमेंट तो आ ही नहीं रही। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस फेस इट? यस और नो? आई डू दिस फॉर 6 मंथ्स बट मैं इंप्रूव नहीं कर पाया। समवन इज राइटिंग। अब देखो, फ्लुएंट होना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अपना हम गोल बना लेते हैं कि पहले मैं सिर्फ करेक्ट होऊंगा। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में करेक्ट नहीं है? मुझे बताओ। जिनको सही इंग्लिश का ज्ञान ही नहीं है, मुझे बताओ। लेट मी नो क्विकली गाइस, बी ऑनेस्ट, राइट? मुझे बताओ ऑनेस्टली। रजत, कैन यू प्लीज ओपन अप द चैट बॉक्स? दैट्स वंडरफुल, चैट बॉक्स ओपन कर दो अब। ठीक है यार, देखो अगर तुम्हें सच में इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है और टाइम पास नहीं करना, तो जितने भी लोग अभी मी लिख रहे हैं ना, तुम लोग अपने नोटबुक में लिख लो
कि तुम्हारा सबसे पहला गोल बोलना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा सबसे पहला गोल होना चाहिए कि मुझे पहले करेक्ट होना है, मुझे सही की समझ होनी चाहिए। ठीक है, आया सबको समझ में? जो लोग इंग्लिश में करेक्ट हैं, जो थोड़ा बहुत ढंग से लिख लेते हैं, तो उन लोगों को अपनी इंग्लिश को फास्ट एंड कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना चाहिए। आया समझ में? ठीक है, आया अभी इतना समझ में आया, लेवल समझ में आया? क्योंकि जो लोगों का लेवल करेक्ट भी नहीं है ना, वो लोग स्पीकिंग के सपने देख रहे हैं। मुझे आप लोगों के सपने देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें सपने वो देखने चाहिए जो अभी हम अचीव कर सकते हैं। यस और नो? आया ना समझ में? हाउ कैन आई मेजर माई लेवल? आई एम गोना लेट यू नो। मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि कैसे कर रहे हैं, बट अभी अपने नोटबुक पे ये लिख लो, ये टेबल फटाफट बना लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम गोना मेजर अप योर लेवल, डोंट वरी। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक पे लिख लो कि आप यहां पे हो या यहां पे हो। पहले एक चीज, सबसे पहले अगर आप करेक्ट नहीं हो तो योर लेवल शुड बी लाइक दिस वे। अब मूविंग हेड, फटाफट आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसको अचीव करने के लिए करना क्या है। एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो? जैसे अगर करेक्ट नहीं हो तो क्या करना है, अगर क्विक एंड कॉन्फिडेंट नहीं हो तो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अच्छे से सुनना। ठीक है, और जल्दबाजी मत करो। यहाँ पे कुछ लोग बच्चे ना थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है ना, कि 20-25 सालों से तो मैं फ्लुएंट नहीं हूं इंग्लिश में, है ना, पर मुझे 20 मिनट में मैं चाहता हूं कि मेरा ट्रेनर मुझे फ्लुएंट कर दे। किस बात की जल्दबाजी? 20-25 साल वेट किया है तो 10 मिनट और सही। यस और नो? कितने लोग इस चीज को समझ पाएंगे? यस और नो? हियर वी गो नाउ, मूविंग अहेड। अब हम इस चीज से आगे बढ़ते हैं यार। इफ यू गाइज वांट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश ना, सिर्फ हमें 3 चीजें अचीव करनी है, दिस इज द ओवरऑल फ्लुएंसी। आप में से कितने लोग एग्री करेंगे कि ये हमारे गोल्स हैं? ठीक है, ये हमारे अल्टीमेट गोल्स हैं। कि आप लोग में से बहुत सारे लोग ये चाहते होंगे दैट अमन आई वांट टू राइट ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, जैसे मैं व्हाट्सएप चैटिंग, ईमेल, लेटर राइटिंग करता हूं। यस और नो? सबका ये गोल होगा। कितने लोगों का ये पहले वाला गोल है? एंड सेकंड थर्ड तो सबका कॉमन ही होता है कि मैं फोन पे अच्छे से बात कर पाऊं एंड मैं किसी के सामने कॉन्फिडेंटली बात कर पाऊं। ये 3 गोल्स हैं। एंड आपको पता है सबसे मजेदार बात क्या है? यू नो व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग? once you achieve these three once you achieve these 3 goals, you are fluent in English. Because हमें चाहिए क्या? कि मैं ढंग से चैट कर पाऊं, ईमेल राइटिंग लिख पाऊं, मेल्स लिख पाऊं, डन, गोल अचीव्ड। सेकंड थिंग, आई शुड बी गुड इनफ टू टॉक विद समवन ओवर द कॉल। गुड, कॉल कॉल पे मैं बात कर पाऊं, सही है, गोल अचीव हो गया। द थर्ड थिंग वुड बी कि इफ समवन इज टॉकिंग टू मी सामने आमने सामने, आई शुड बी गुड इनफ एंड आई शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक। यही 3 गोल्स हैं। अब गाइस देखा जाए ये गोल्स तो हैं तुम्हारे, पर देखा जाए ये हमारी प्रॉब्लम्स भी तो है ना। लाइक ये हमें तो ये तीनों चीजें ही नहीं आती तो प्रॉब्लम्स हो गई। देखा, गोल्स बन गए 1 सेकंड में प्रॉब्लम्स, है ना। प्रॉब्लम्स हमारी दिखते भी तो यही है ना, कि मैं अभी ये नहीं कर पाता, मैं अभी ये नहीं कर पाता, मैं ये अभी नहीं कर पाता। ये सुनो, अब हम समझते हैं कि हमें कौन सी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है। एंड यू गाइस विल बी एबल टू गेट द क्लियर पिक्चर कि व्हाट यू नीड टू डू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। सबसे पहले लेट्स मेक इट स्मॉल। इतनी बड़ी बड़ी बातों से पहले हम ना चीजों को बहुत ही रूट लेवल एंड बेसिक से समझते हैं। एंड दीज आर गोइंग टू बी द बेसिक पार्ट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि एक सिंपल सी बात निकल के सामने आ रही है कि इफ यू वांट टू मास्टर द इंग्लिश फ्लुएंसी, देयर 3 गोल्स शुड बी देयर। यू वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आपको अपना एक टेक्स्ट पार्ट भी इंप्रूव करना पड़ेगा, ऑडियो भी इंप्रूव करना पड़ेगा एंड वीडियो भी इंप्रूव करना पड़ेगा। यस और नो? ऑडियो वीडियो समझते हो ना? मैं समझाऊं। टेक्स्ट मतलब जिस तरीके से हम लिखते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग। ऑडियो मींस फोन पे बात करना, एंड वीडियो मींस जिस तरीके से वी डू द वीडियो कॉल और आमने सामने बात करना। डन। एंड आप में से कितने लोग एग्री करोगे कि यार ये तीनों गोल्स अचीव होते ही, like we will be able to achieve the English language? Yes or no? How many of you guys can relate with it? पहले तो मुझे ये बताओ। राइट, सब लोगों को समझ में आ रहा है अभी? राइट, सब लोगों को समझ में आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है? सबको समझ में तो आ रहा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं आपका लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा हो? ऐसा तो नहीं हो रहा ना? समझ में आ रहा है ये मुझे बताओ। समझने से मजा भी आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? ऐसा तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है, घुस रहा है कुछ दिमाग में? ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। नाउ, और अगर मैं बातों बातों में तुम्हें डांट लगाऊं ना, तो बुरा मत मानना। डांट लगाने वाले लोग शायद हमारा भला ही चाहते हैं। यस और नो? कम ओवर है नाउ। सो अब ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फटाफट चलते हैं कि व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड इट। देखो फटाफट अब आप इस चीज को समझो। लेट मी फोकस अपॉन द टेक्स्ट पार्ट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यार हम लोग टेक्स्ट कैसे करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं कि इंडिया में एक आम इंसान कोई भी हो, मैं, आप, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, कोई भी हो, यस और नो,
हम लोग टेक्स्ट करते कैसे? लेट्स सपोज आई नीड टू राइट समथिंग टू यू ऑन व्हाट्सएप, मुझे ना कुछ लिखने का मन किया कि मैं अपने दोस्त को कुछ हिंदी में लिखूं या कुछ इंग्लिश में लिखूं। लेट्स सपोज, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि मेरा मन किया कि मैं कुछ इंग्लिश में लिखूं, सो दिस इज द वे आई एम गोना राइट। ओके, सो मैं इस तरीके से लिखूंगा, हेलो एवरीवन, कॉमा, आई होप यू आर डू ग्रेट। यार सेंड बटन दबा दूं क्या? नहीं नहीं यार, गलत हो जाएगा। आई होप यू आर डू ग्रेट मतलब मैं आशा करता हूं तुम सही हो। आई होप यू आर डू ग्रेट, यार अजीब सा लग रहा है, गूगल ट्रांसलेटर कर लूं क्या? नहीं यार, ये सब लोग देख रहे हैं। चलो ठीक है, हेलो एवरीवन, कॉमा, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। हेलो एवरीवन ये तो सुना भी हुआ है, तो सही लग रहा है। आई होप यू डूइंग ग्रेट सही लग रहा है। बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस, डूइंग ग्रेट, फुल स्टॉप। यार यार इतना टाइम हो गया, रिप्लाई नहीं किया तो बेइज्जती हो जाएगी। डूइंग, यार फैबुलस वर्ड उस दिन सुना था ना, तो गुड फैबुलस लिख लेता हूँ। बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस। अब फैबुलस वर्ड की स्पेलिंग तो गूगल, सो सॉरी गाइस, गूगल कर लेता हूँ। एक सेकेंड, फैबुलस, FAB, ठीक है, फटाफट ऑटो करेक्ट ही हो गया। आई होप यू आर डूइंग फैबुलस, अब सही लग रहा है यार। यार गलत है, चल यार हिंदी में ही लिख लेता हूँ यार, इंग्लिश कब आएगी? बैक स्पेस सेलेक्ट ऑल, डिलीट। अब हिंदी में, और भाई कैसा है? मैं ठीक हूँ, ओके, सेंड। यार इंग्लिश, क्या यार इंग्लिश आई नहीं रही, चल सीखूंगा यार, क्या करूं, कल से सीखता हूँ। नहीं, यूट्यूब उस दिन किया था, चल यार देखता हूँ। स्टॉप। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से कनेक्ट कर पाए? मुझे बताओ, कितने लोग, जो भी बातें मैंने मुंह से बोली, कितने लोग ऐसे हैं जो ये सारी की सारी बातें आपके मन में चलती हैं? चलती हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप सब लोग स्लो हो इतना, बट द पॉइंट इज कि कोई स्लो हो सकता है, कोई फास्ट हो सकता है, बट दीज आर काइंड ऑफ द इंटरनल स्ट्रगल्स। अब बोलने में तो क्या होता है, हम बिल्कुल नम हो जाते हैं, जब कोई बोलने की बारी आती है तो हम बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं। लिखने में हम ये सारी बातें अपने आप से पूछते हैं, यस और नो। अब आप इस चीज को बहुत ही आराम से समझो, रजत क्लोज द चैट्स। यार इस एग्जाम्पल से ना एक चीज मैं आप लोगों को प्रूव करना चाहता हूं, कितने लोग एग्री करेंगे कि इस चीज से एक तो चीज कनेक्ट होती है कि जब कोई भी लिखे ना, इंग्लिश में कोई भी लिखता है, आप लिखो, मैं लिखूं, नरेंद्र मोदी लिखे, विराट कोहली लिखे, कोई भी लिखे, बराक ओबामा लिखे, यार हु केयर्स, कोई भी लिखे, हम सब लोगों के पास 5 to 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा है सोचने के लिए, यस और नो। टेक्स्ट में सोचने का टाइम हम सब लोगों को ज्यादा मिलता है, यस और नो, ये तो बात एग्री करते हो? तुम्हें मैं कुछ लिखने के लिए दूं तो टाइम थोड़ा कंफर्टेबल तुम फील करते हो ना, यस और नो? कंफर्टेबल भी फील करते हो, दिमाग को टाइम भी ज्यादा मिलता है। फिर भले ही दिमाग कुछ भी गलत बोले सही बोले, बट कितने लोग एग्री करेंगे कि व्हेन इट्स द मैटर ऑफ द टेक्स्ट पार्ट, वी ऑल हैव अराउंड 5 to 10 seconds एक्स्ट्रा, बट व्हेन इट्स द मैटर ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, वी हैव 0 seconds एक्स्ट्रा। आया पहले एग्जांपल समझ में आया? अभी मैं आपको आऊंगा, लाइक आई विल बी कमिंग टू द डायरेक्टली ऑन द पॉइंट, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे पहली चीज तो ये आई है समझ में कि यार जब मैं टेक्स्ट करता हूं तब मेरे पास 5 से 10 सेकंड एक्स्ट्रा है, बट व्हेन इट कम्स टू द ऑडियो एंड वीडियो, लेट्स सपोज आई एम हैविंग अ वर्ड विद यू गाइस इन इंग्लिश, द मोमेंट आई विल स्टॉप, यू नीड टू गिव मी द आंसर ऑन द स्पॉट, है ना? अगर मैंने अपना सेंटेंस खत्म किया इंग्लिश में तो आपको ऑन द स्पॉट आंसर देना है। अगर आप लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि सोचने का तो टाइम होता ही नहीं, डू यू गाइस थिंक दैट आई एम थिंकिंग एंड देन आई एम स्पीकिंग? नो, आई एम स्पीकिंग डायरेक्टली, यस और नो? सो क्योंकि लाइक सोचने का तो टाइम नहीं है ना, विद दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ना, इतना तो समझ में आया ना, लिखते हैं तो 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा मिलते हैं, ऑडियो एंड वीडियो में मुझे क्या, किसी को भी, आपको भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलता। नाउ यार आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि हम लोग अपने प्रॉब्लम के हिसाब से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हम लोग ना गूगल यूट्यूब पे, बस यही हमारा माइंडसेट है कि हाउ टू स्पीक क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। व्हाट इफ आई टेल यू यार ये क्वेश्चन ही गलत है, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे सब लोग उसका ऑनेस्टली आंसर देंगे। रजत चैट ओपन करो एंड द क्वेश्चन इज दिस, सब लोग मुझे ऑनेस्टली आंसर दो कि अगर तुम 10 में से अराउंड 8 या 10 सेंटेंसेस करेक्टली लिख लेते हो तो लिखो यस, एल्स लिखो नो। सब लोग क्विकली गाइस गिव मी द आंसर, ऑनेस्टली मुझे आंसर देना, ठीक है? प्लीज डोंट डू एनी काइंड ऑफ टाइम पास एंड ऑल दैट, माय टाइम इज इंपॉर्टेंट, आप लोगों का भी इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग मुझे आंसर दो कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 10 में से अराउंड 80 to 90%
इंग्लिश सही लिख लेते हैं? मुझे बताओ, एवरीवन क्विकली गिव मी द आंसर, क्विकली गाइस, एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू गिव द आंसर क्विकली गाइस, एवरीवन शुड गिव। नो है, यस है, समटाइम्स आंसर मत लिखना, ठीक है? नो लिखना या यस लिखना, ठीक है? फटाफट फटाफट फटाफट। एक बच्चे ने लिखा है, एक बच्चे ने आंसर लिखा है यस आई डज। यही सेंटेंस ही गलत है, तो बेटा तेरा तो आंसर नो आई डोंट हो गया। एक बच्चे ने आंसर लिखा है यस आई डज, कि मैं लिख लेता हूं, इसी में ही गलती है। नो वरीज, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो चैट्स क्लोज। गाइज आपने एक चीज तो यहां पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में नोटिस की होगी, मैं आपको बता देता हूं, राइट? एज पर योर वोटिंग्स ना, एज पर योर वोटिंग्स, सब लोग इसके साइंस को समझना, एज पर योर वोटिंग्स around 75% people said no and only 25% people said yes. 75% जनता ढंग से नहीं लिख सकती है, ओनली 25% जनता आर एबल टू राइट। नाउ समझने वाली बात यह है, आई वुड लव टू नाउ इंट्रोड्यूस द लेजेंडरी ताफ प्रिंसिपल। अभी जब बोलूंगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, तुम्हारा दिमाग खुलने वाला है, राइट? अब समझो इस बात को प्रैक्टिकली। मैंने कहा ना, जो लोग अपना इंग्लिश में ज्यादा दिमाग चलाते हैं ना, उनको इंग्लिश नहीं आती कभी भी, क्योंकि वो उनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है। बट द पॉइंट ओवर हियर इज, इंग्लिश बहुत ही बेसिक लेवल है, इंग्लिश एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है। जब तक तुम बेसिक्स नहीं अपने स्ट्रॉन्ग करोगे, तुम्हें इंग्लिश नहीं आने वाली। जितना मर्जी कोशिश कर लो, कोई भी एक्सेंट ट्रेनिंग ले लो, वोकैबुलरी ट्रेनिंग ले लो, मैं आपको पहले बता रहा हूं, और अभी विद दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आई एम गोना प्रूव इट, बिकॉज गाइस वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ टोटली सिंपलिस्टिक, इतना सिंपल है। बट वही बात है ना कि बड़े से बड़ी चीजों का जो सोल्यूशन होता है वो सिंपल होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स इजी गाइस। एक सिंपल सी बात ये है, आई वुड लव टू नाउ एक्सप्लेन यू द ताफ प्रिंसिपल, टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो। एंड ये ताफ प्रिंसिपल कहता क्या है? बहुत ही छोटी सी बात कहता है। पहली चीज तो एक ये है कि लेट्स सपोज दिस इज यू। मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या तुम अभी टेक्स्ट कर लेते हो, क्या तुम लिख लेते हो? 75% जनता ने क्या बोला कि नहीं भाई मैं तो लिख ही नहीं पाता। यस और नो, ये रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर इंडिया। अभी अगर मैं वोटिंग करूं, 500 से ज्यादा लोग हैं, more than 350 people are saying that they are not able to write in English properly. Now what if I tell you कि जिन लोगों ने यहां पे आंसर नो दिया है ना, अभी उनका आंसर ऑडियो में भी नो होगा एंड वीडियो में भी नो होगा। सिंपल सी बात यही है कि तुम में से जो लोग भी ढंग से नहीं लिख पाते, बोल तो हम क्या ही पाएंगे फिर? सिंपल सी बात ये है। यस और नो? कितने लोगों को ये रियलिटी अपनी पता लगी? बात सही है या नहीं है, मुझे बताओ। ओपन अप द चैट बॉक्स रजत। जितने भी लोगों ने लिखा कि मैं ढंग से नहीं सही लिख पाता, अभी तुम लोग ऑडियो एंड वीडियो में भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या? थैंक यू सो मच गाइस दैट यू गाइस आर सपोर्टिंग मी लाइक दिस वे। सबको मजा आ रहा है बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एंजॉयिंग? मैंने बोला था ना नजरिया बदलेंगे, अभी मैं तुम्हें करेक्ट होना भी सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। फटाफट, ये माइंडसेट की चीजें पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दिन से ही अगर मैं तुम्हें पढ़ाने लग जाऊंगा ना, मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगूंगा। आई वांट कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो। मैं आप लोगों को देने आया हूं, तो आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। नाउ क्लोज द चैट्स। ये देखो एक सिंपल सी बात ये है, नाउ कमिंग ओवर हियर। अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा आप मुझे एक एज्यूम, अच्छा ओके, लेट्स सपोज दिस इज वी, ये हम लोग हैं, और जब भी हम कुछ भी बोलते हैं या सुनते हैं, अपने ब्रेन से पूछते हैं, ब्रेन ही हमें इंस्ट्रक्शंस देता है। रियलिटी हमारी क्या है कि अगर मैं अभी अपने दिमाग को 5 से 10 सेकंड दूं, 5 से 10 सेकंड हम कब देते हैं? जब हम लिख रहे होते हैं। अभी हमारी रियलिटी क्या है कि अगर मैं अपने दिमाग से कुछ, अगर मैं अपने हाथों से कुछ भी लिखना चाहता हूं ना, मेरा दिमाग 5 से 10 सेकंड सोच भी ले, फिर भी हम ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं लिख पाते। दिस इज अ रियलिटी। सिंपल बात ही है ना, लाइक लेट्स, आई एम नॉट हियर टू शो ऑफ माय नॉलेज, आई एम हियर टू टॉक अबाउट द फैक्ट्स, बिकॉज द काइंड ऑफ रिसर्च व्हिच वी गाइस हैव डन, लाइक मैं पिछले 5 सालों से इंग्लिश लैंग्वेज पे रिसर्च कर रहा हूं गाइस। सिंपल सी बात ही है, कितने लोग एग्री करेंगे? दिस इज अ रियलिटी ना। why we are running, like why we are running away from a reality? कितने लोगों को लगता है ये हमारी रियलिटी है कि जब भी मैं कुछ लिखने लगता हूं, मेरे दिमाग को 5 से 10 सेकंड एक्स्ट्रा मिलते हैं, मैं तो फिर भी सेंटेंस गलत बनाता हूं। ये हमारी रियलिटी है। पर हमें जिस तरीके से बताया जाता है ना प्रैक्टिस करने के लिए, वो बिल्कुल भी हमारे लेवल के अकॉर्डिंग है ही नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं? हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, पर हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, इंग्लिश जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा तो इंप्रूव होंगी। हम डायरेक्टली स्पीक करने का ट्राई करते हैं। और आप सब लोगों को पता है कि जब हम स्पीक करते हैं, हमारे पास सोचने के लिए कितना टाइम है? टाइम है ही नहीं, 0 सेकेंड्स है। तो क्या मैं बोल पाऊंगा? द आंसर इज बिग नो। बात सही है ना?
मेरा दिमाग 5 से 10 सेकंड में ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश लिख भी नहीं पा रहा अभी, और मैं अपने दिमाग को फोर्स करता रहता हूं कि नहीं नहीं बोलेगा, हो सकता है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। क्या ये चीज पॉसिबल है? आप मुझे बताओ। इफ माई ब्रेन इज फेलिंग ओवर हेयर, क्या मेरा ब्रेन चाहे मैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लूं पास हो पाएगा? द आंसर इज नो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये गलतियां करते हैं? मुझे बताओ। यही तो माइंडसेट है ना। हमें बोला क्या जाता है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ज्यादा से ज्यादा बोलो, तुम लोग फ्लुएंट हो जाओगे। ट्राई किया, हो गए क्या? द आंसर इज नेवर। कितने लोगों को जस्ट आई वाओ, अगर आपको लग रहा है दिस इज द वाओ मोमेंट, जस्ट आई वाओ, अगर आपको समझ में आया, लेट मी नो एवरीवन क्विकली। कितने लोगों को लगा बात में है ना दम यार? सिंपल सी बात है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको मेरी हर बात पे हाँ बोलना है। अगर आपको लॉजिकल लगती है तभी हाँ बोलना, ये नहीं कि मैं इस स्टेज पे खड़ा हूं तो मैं हाँ बोल रहा हूं तभी तुम लोग हाँ बोलोगे। जस्ट बी, यू नो, आई टॉक अबाउट फैक्ट्स, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सबको समझ में आया ना? ठीक है, सबको ये चीज समझ में आई ना कि तो इससे एक चीज तो बहुत प्रूव होती है ना। आपको पता है एक सबसे बड़ी हमारे इंडिया में ना, हमारे इंडिया में ना एक थोड़ा इश्यू भी है कि हमें पता है क्या लगता है, हम लोग ना अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस ना यहां से स्टार्ट करते हैं कि मैं डायरेक्टली बोलना सीखूंगा। और हमें ऐसा लगता है कि यार एक बारी मुझे लोगों के सामने बोलना आ जाए, एक बारी मेरा स्पीकिंग ठीक हो जाए, तो एक बारी मेरा स्पीकिंग ठीक हो जाए तो फोन पे बात तो कोई भी कर लेता है यार। फोन पे तो मैं कर ही लूंगा, लिख तो मैं लूंगा ही। कितने लोग अपनी जर्नी ऐसे स्टार्ट करते हैं? यस और नो? अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो दिस इज द रॉन्ग वे। आया मजा? कितने लोगों की ये गलती थी? मुझे बताओ। बात सही है ना? क्या लगता है, अरे मैं डायरेक्टली बोलना सीखूंगा यार, स्पीकिंग क्लासेस चाहिए, इंग्लिश एनवायरमेंट चाहिए। दिस इज द वे ना, आई एम सो सॉरी टू लेट यू नो, दिस इज द रॉन्ग वे। रादर व्हाट शुड बी, यार देखो, तो सिंपल सी बात यह है कि हमें ना हमें ना अपनी जो प्रॉब्लम है उसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी द परमानेंट सोल्यूशन, दिस इज द राइट वे। क्योंकि देखा जाए एक सिंपल सी बात क्या है, देखा जाए सिंपल सी बात क्या है कि अपनी जो इजी थिंग है ना, जो टेक्स्ट पार्ट है, पहले वो इंप्रूव कर देते हैं। टेक्स्ट तो इजी होता है ना, हाँ या ना? टेक्स्ट तो इजी है ना, बोलना डिफिकल्ट है, लोग देख भी रहे हैं, बोलना भी है, कॉन्फिडेंस भी शो करना है। टेक्स्ट तो इजी है ना। तो पहले हमारा पर्सपेक्टिव क्या है कि तुम्हें टेक्स्ट पहले अपना इंप्रूव करना चाहिए, तब आगे जाना चाहिए। पर लोग अपने ईगो में आते हैं, लोग कहते हैं नहीं मैं तो डायरेक्टली फ्लुएंट बनूंगा, तो फिर बस फिर जो अपने ईगो में आता है फिर वो ईगो में ही रहता है। सो दिस इज द रॉन्ग वे। ये इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ताकि जब भी तुम लोग करेक्ट होने से पहले ना तुम लोग बोलना चाहो ना, तो ये चीज तुम्हें याद दिलाए कि तुम गलती कर रहे हो। हर ये देखो, बोलना इज अ गुड प्रैक्टिस, बट उन लोगों के लिए जो अपना टेक्स्ट एंड ऑडियो ठीक कर चुके हैं, हाँ या ना? जो लोग टेक्स्ट एंड ऑडियो जिनका ठीक है वो बोलने की प्रैक्टिस करें ना। जिन लोगों का टेक्स्ट पार्ट ही ठीक नहीं है वो बोलने की ट्राई करते हैं, फुलिश, टोटली फुलिश, गेम इज ओवर। उनका विकेट वहीं गिर गया है यार, उनको इंग्लिश कभी नहीं आ सकती। जिनके दिमाग में करेक्ट इंग्लिश तो है नहीं, पर उनको लगता है मैं बोलूं, कहां से बोलोगे, पानी टंकी की खाली है। आया समझ में? ठीक है, गॉट इट नाउ, सबको समझ में आया? सो अगर आप लोगों का कित और तुम में से 75 से 80% लोगों का भी टेक्स्ट पार्ट ठीक नहीं होगा, तो समझो इस बात को, अगर इंग्लिश में परमानेंटली इंप्रूव होना है ना, अगर टाइम पास करना है तो फिर तो जिंदगी बहुत है, 50-60 साल इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहो, नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप चाहते हो ना कि 2-3 महीने में ही असर दिखे, दिस इज व्हाट इट इज। सबको ये चीज समझ में आया? ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, राइट? एक अपना अब इस क्वेश्चन का बहुत ही एक अच्छा सा सिंपल सा आंसर है। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि यार अमन सर, जो यूएसए एंड अमेरिका के बच्चे होते हैं वो तो टेक्स्ट नहीं कर सकते पर वो बोल तो अच्छा लेते हैं, फिर तो ये ताफ प्रिंसिपल फेल हो गया। यस और नो? कितने लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि यार जो यूएसए कनाडा के बच्चे होते हैं वो तो ढंग से बोल लेते हैं, राइट, पर वो तो टेक्स्ट नहीं कर पाते, तो ऐसे कैसे? ये तो कोई तो गलत हो गया। एक मिनट, आज का जो ये सेशन है क्या मैं ये यूएसए एंड कनाडा के लोगों के लिए ले रहा हूं? नो, ये ताफ प्रिंसिपल इंडियन लोगों का प्रिंसिपल है। वो लोग जिनको इंग्लिश का इन्वायरमेंट बचपन से नहीं मिला, उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए, दिस इज द वे। आया समझ में? सो ठीक है, उनकी तो मदर टंग है ना। अब हमें कोई, अब डायरेक्टली हम किसी अंग्रेज को हिंदी बोलना सिखा सकते हैं नहीं ना। पहले वो थोड़ा थोड़ा हिंदी के बारे में समझेगा, थोड़ा थोड़ा, चाहे इंग्लिश में ही ऐसे लिखे कि मैं वहां जाऊंगा, इस तरीके से सीखेगा ना। समझो इस बात को, ठीक है? सो वी हैव ऑलरेडी डन, ये इंडिया के लिए है ना,
इंडियन लोगों के लिए, ये अमेरिकन लोगों, तुम अमेरिका से हो, जो इसने बोला कि बच्चे बोल लेते हैं, तू अमेरिका में रहता है भाई, राइट? वही ना, लॉजिकल समझो यार, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में करेक्ट होना कैसे है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। नाउ इट्स गोइंग टू बी द प्रॉपर प्रैक्टिकल वे। देखो अब एक सिंपल सी बात ये है कि अगर देखो यार, इंग्लिश को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि मुझे अपना रिटन सुधारना है एंड स्पोकन सुधारना है। पहले मैं अपना रिटन सुधारूंगा, क्यों? क्योंकि मैं पहले इंग्लिश में करेक्ट होना चाहता हूं। क्लैरिटी मिली? यस और नो? यस और नो? क्लैरिटी मिली? मुझे बताओ, क्लैरिटी मिली? सबको क्लैरिटी मिली? एंड द पॉइंट इज कि उसके बाद मैं अपने स्पोकन पे कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि मुझे क्विक एंड कॉन्फिडेंट होना है। बिकॉज वेन एवर वी राइट ना गाइस, देखो एक सिंपल सी बात है कि जब भी तुम लिखोगे ना, तो तुम सब लोगों का एक ही गोल होगा। क्या ये गोल होगा कि तुम कॉन्फिडेंटली लिखो? नहीं। क्या तुम्हारा ये गोल होगा कि फटाफट लिखो? नहीं। जब भी हम लिखते हैं, हमारा सिर्फ एक ही गोल होता है कि जो मैं लिखूं वो सही होना चाहिए। तो इसलिए रिटन पार्ट को करेक्ट से, मैंने कहा ना, सिंपल, keep it simple, you're gonna get the results. The people, those who make it complicated, they can never achieve the English fluency goals, and that's what we do with people, right? We might not be having, and कितने लोगों को ये प्रिंसिपल्स अच्छे लग रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक है। अगर आप आंखें बंद करके एक 6th क्लास का भी स्टूडेंट इनको समझ सकता है। नाउ अब सबको ये चीज समझ में आई ना? देखो, ये है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वे आपकी इंग्लिश की प्लानिंग। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए हमें अपना रिटन पोर्शन को सही करना है। उसके बाद हम अपने इंग्लिश को फास्ट एंड कॉन्फिडेंट करेंगे, और इस जर्नी पे हमारा स्पोकन इंप्रूव होगा। पर लोग क्या करते हैं, यहां पे होते हैं और यहां पे भागते हैं, इंग्लिश नहीं आती। आया मजा? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? दिस इज द वे, दिस इज द सिंपल वे गाइस, कोई भी अचीव कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस थिंक दैट यू गाइस नाउ कैन अचीव इट? कितने लोगों को लगता है नाउ यू गाइस कैन अचीव इट? यस और नो? कितने लोगों को लगता है नाउ यू गाइस कैन अचीव इट? जस्ट टाइप अचीव इट, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। और अभी मैं आपको बताऊंगा, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार मैं अपना रिटर्न पोर्शन कैसे करेक्ट करूं। मैं आपको, यू जस्ट गिव मी 15 मिनट्स, आई एम गोना ब्लो योर माइंड ऑफ। यू गाइस के कितने लोगों को लगता है यू गाइस कैन अचीव इट? यार देखा जाए, इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बोलना तो बहुत बड़ा गोल है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, यू गाइस कैन अचीव इट। यस और नो? आधा तो रिटर्न पोर्शन तुम्हारा इंप्रूव होगा ही पहले, मुझे तो आधा ही करना है ना। यस और नो? सबको ये चीज समझ में आ रही है? सबको? कितने लोगों को लगता है यू गाइस कैन अचीव इट? कोई मुश्किल है क्या? कुछ भी नहीं है। पहले मुझे अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है, रिटर्न, एंड ये जर्नी तो इजी होती है। ये एक बार ही मेरा ठीक हो जाए, करेक्ट होना है या नहीं होना, होना है ना, क्योंकि ये तीनों चीजें मुझे चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? ठीक है, आया समझ में? नाउ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यार इंग्लिश में करेक्ट कैसे होना चाहिए। ठीक है, राइट? नाउ द पॉइंट इज कि इंग्लिश में करेक्ट कैसे होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ इस जर्नी को यहां तक चलना चाहते हैं? मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वांट टू लर्न और वांट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इन द न्यूएस्ट वे, लाइक एक ऐसा तरीका जिससे तुम अभी सेंटेंसेस बनाने लग जाओगे। ठीक है, देखो यार, अब मैं आपको, आई बी कीपिंग इट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अपना तो इतना तो समझ में आया ना, अगर तुम करेक्ट नहीं हो तो यू नीड टू इंप्रूव योर टेक्स्ट और रिटन पार्ट। अगर तुम क्विक एंड कॉन्फिडेंट नहीं हो, यू नीड टू इंप्रूव योर ऑडियो एंड स्पोकन पार्ट। नाउ अब इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है कि कैसे हम अपनी करेक्ट को कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जर्नी को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी लेट्स फोकस अपॉन कि कैसे करेक्ट करना है। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वे है। ये जितने भी मैंने आपको शीट दिखाई है ना, ये शीट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर अभी मैं आपको एक हेलीकॉप्टर व्यू से एक चीज बताता हूं। देखो, अब कितने लोग ऐसे हैं जो जब सेंटेंस देखते हैं, तुम लिख ही नहीं पाते? आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर तुम कोई सेंटेंस नहीं लिख पाते ना, तो क्या सोचना है कि तुम लिख पाओ। इंटरेस्टिंग। क्या करना है कि तुम लिख पाओ। इंटरेस्टिंग। और ये रिजल्ट्स तुम्हें कल ही दिखने लग जाएंगे अपने अंदर। रेडी हो? कितने? देखो यार, एक सिंपल सी बात है, हाउ टू बी करेक्ट का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज एक सेंटेंस है, ये आपका नेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको आपको इंग्लिश में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? राइट? नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप बाय स्टेप वे। हियर वी गो। देखो, अगर तुम्हें अपनी सेंटेंस की फॉर्मेशंस को मास्टर करना है ना, क्योंकि करेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि तुम्हें अपनी सेंटेंस की फॉर्मेशंस को मास्टर करना है। अगर करना है ना, तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है, तुम्हें दो चीजें पता होनी चाहिए कि हमें कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करना है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो भी कोई सेंटेंस लिखना चाहते हो या बोलना चाहते हो, हम लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते? कितने लोगों की ये मेजर प्रॉब्लम है? मुझे बताओ, कमेंट्स में बताओ कि यार हम, मैं बोलना तो चाहता हूं, मैं स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा। तुम्हें पता लगेगा
आज एंड कल में तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, है ना। और अगर स्टार्ट हो जाता है, बीच में अटक जाते हैं क्योंकि फिर हम खत्म नहीं कर पाते। तो मेन प्रॉब्लम्स तो यही है ना, हाउ टू स्टार्ट अ सेंटेंस एंड देन इफ वी हैव स्टार्टेड, हाउ टू कंप्लीट अ सेंटेंस। कितने लोगों की मेजरली यही दो प्रॉब्लम है। तो आओ अभी इन्हीं दो प्रॉब्लम को पकड़ते हैं। लाइक समवन इज सेइंग दैट आई स्टक इन बिटवीन, इट मींस दैट यू आर एबल टू स्टार्ट अ सेंटेंस बट यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट। सो इट मींस योर माइंड इज नॉट क्लियर। माइंड क्लियर नहीं है ना, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, खत्म कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि माइंड क्लियर करने की प्रैक्टिस क्या होती है। ये वन ऑफ द वेज है, वी हैव इन्वेंटेड मोर देन 30 न्यू वेज टू मास्टर स्पोकन इंग्लिश इन इंडिया, राइट। हियर वी गो। आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट अ सेंटेंस, यू गाइस विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। नाउ सो द पॉइंट इज, एक चीज और है। एक बच्चा लिख रहा है कि सर प्लीज बी क्विक। व्हाई वुड आई बी क्विक? क्या मेरी स्पीड स्लो है क्या? मुझे बताओ, कितने लोगों को मेरी स्पीड स्लो लग रही है? सो द पॉइंट इज, अगर किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो वो लीव कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा तो वो आराम से लीव कर सकता है, लाइक बिकॉज वी नो द काइंड ऑफ क्वालिटी कंटेंट विच वी आर डिलीवरिंग। सो मैं लाइक वी आर लर्निंग ना, राइट। किसी को बहुत जल्दी हो रही है, 25 साल से नहीं हो पाया फ्लुएंट, अब इसको 5 मिनट में पूरा इंग्लिश पढ़ना है, राइट। नाउ हियर वी गो, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग गाइस, इट्स ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो। नाउ कमिंग ओवर हियर, इंग्लिश इज इजी, थोड़ा लाइट रखो अपने आप को। नाउ अब here we go। अब ना व्हाट इफ आई टेल यू, अब आप सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? नाउ लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। here we go गाइस, नेक्स्ट 15 मिनट्स कमिंग, आपका पूरा इंग्लिश का नजरिया बदलने वाला है। एक्साइटेड हो? देखो अब एक सिंपल सी बात है कि लेट्स सपोज ये कोई सेंटेंस है, अगर तुम एक ही बारी में इसको इंग्लिश में बना पा रहे हो इट्स ग्रेट, बट लेट्स सपोज यू आर नॉट एबल टू मेक इट, तो क्या करना चाहिए? सिंपल, हम पता है अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाते हैं, ये कि अगर तुम कोई सेंटेंस नहीं बना पाए ना, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस सेंटेंस में क्या लगाओ? डी टेक्निक लगाओ। तो में से कितने लोगों को डी टेक्निक को पता है? कितने लोगों को डी टेक्निक के बारे में पता है? नहीं पता होगा, राइट। कितने लोगों को डी टेक्निक के बारे में पता है? नहीं पता है। मैं आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा, बट अभी चलते हैं। देखो कोई भी सेंटेंस दिखता है तो फटाफट डी टेक्निक लगाओ। सेकेंड चीज क्या होता है, उसके बाद तुम्हें सेंटेंस का टाइम एंड सेंस पता होना चाहिए। एंड फिर आपको क्या करना है? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन शीट का यूज करना है, एंड तुम्हारा सेंटेंस बन गया। सिंपल सी बात यह है। मैंने अभी तक क्या बताया? अगर जिंदगी में कोई भी सेंटेंस ना बने, ना बोल पाओ, ना लिख पाओ, क्या करना है? एक तो ये तरीका है कि मैं नहीं बोल पा रहा, गूगल कर लिया, यूट्यूब कर लिया। दैट इज अ फुलिश वे। उससे तुम्हारा दिमाग ग्रो हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर मैं कोई सेंटेंस नहीं लिख पा रहा, मैंने गूगल कर लिया, तो गूगल इंप्रूव हुआ ना? क्या आपका दिमाग इंप्रूव हुआ? आपने तो चीटिंग कर ली। बट आर वी गाइस हियर फॉर द चीटिंग? नो, वी नीड टू मेक अ ब्रेन फास्ट, ताकि मैं हर सेंटेंस कर पाऊं। हाउ? अब दिस इज द वे। इधर देखो, मैंने अभी तक क्या बोला? कोई भी सेंटेंस आ जाए ना, सबसे पहले हमें क्या करना है? डी टेक्निक लगानी है, टाइम एंड सेंस लगाना है, एंड फॉर्मेशन शीट जैसा एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, एंड आपका सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। कोई ग्रामर पढ़ने की जरूरत ही नहीं। दिस इज द न्यू वे। कितने लोग ऐसे हैं जो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ के अपनी नोटबुक्स भर के टाइम वेस्ट कर चुके हैं? Without subject plus object, without learning grammar, how you can become fluent in written and spoken? That is the new art of learning a language. How many of you guys are excited for it? कितने लोग एक्साइटेड हैं? ठीक है, दो नोटबुक्स भर चुके हो आप सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का, क्या हो रही है यार? राइट, वही बात है ना कि मेहनत हमें गधों वाली नहीं करनी है ना। मेहनत तो हर कोई कर रहा है, बट वी नीड टू बी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ आवर मेहनत। नाउ अभी तक मैंने क्या बताया? कोई भी सेंटेंस आए, टी टेक्निक लगाओ, टाइम एंड सेंस लगाओ, एंड फॉर्मेशन शीट लगाओ, सेंटेंस बन जाएगा बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट। नाउ अब क्या है, एज वी हैव लिमिटेड टाइम, मेरी कुछ आगे क्लासेस भी हैं, तो इन तीनों, अब मुझे आपको तीन चीजें बतानी है। व्हाट इफ आई टेल यू कि इस पर्टिकुलर 10-15 मिनट में मैं आज आपको सिर्फ ये सेकेंड टाइम एंड सेंस वाली चीज बताऊंगा, ठीक है। आई विल बी ओनली लेटिंग यू नो दिस टाइम एंड सेंस वाली चीज। कल व्हेन वी विल कम लाइव, आई विल लेट यू नो डी टेक्निक, एंड आई लेट यू नो फॉर्मेशन शीट। सबको समझ में आया? आज हम सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। सबको समझ में आया ये वाली चीज? तीन चीजें हमें करनी है सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी मैं आपको सेकंड वाला पहले समझाऊंगा, ताकि क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, नो वरीज, हम कनेक्ट कर लेंगे, डोंट वरी। लाइक आई विल बी टेकिंग यू इन अ गुड वे, सो डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड टाइम एंड सेंस का कंसेप्ट। कल हम डी टेक्निक एंड फॉर्मेशन शीट कर लेंगे, और तुम लोग मेरे साथ
सेंटेंसेस खुद इंग्लिश में ग्रामेटिकली करेक्ट लिखोगे, दैट्स माय चैलेंज, दैट्स माय चैलेंज। रेडी फॉर दिस चैलेंज? कितने लोग रेडी हैं अपने अंदर वो इंप्रूवमेंट देखने के लिए जो तुमने पिछले 20 सालों में अपने अंदर नहीं देखी? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी टू सी दैट पर्टिकुलर इंप्रूवमेंट इन नेक्स्ट 2 days नाउ? रेडी? करें। 3 चीजें सीखनी है, डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस एंड फॉर्मेशन शीट। तो अब सीखते हैं हम टाइम एंड सेंस क्या होता है। नो 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 नो, समवन इज टाइपिंग, प्लीज स्टार्ट विद द डी टेक्निक। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। लाइक मैं ट्रेनर हूं ना, तो मेरे हिसाब से चलते हैं, राइट? अगर तो या मैं ट्रेनर हूं ना, ओके, मेक सेंस, थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी हूं। सो जस्ट फॉलो इट व्हाट आई एम सेइंग। इसके पीछे का भी एक लॉजिक है, यू विल गेट टू नो इट लेटर ऑन। नाउ अपना यार टाइम एंड सेंस टेक्निक का मतलब पता है क्या है? कि आपको पता है when we did a research on English language ना, मैं पिछले 5 सालों से इंग्लिश लैंग्वेज पे रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को फ्लुएंट बना चुका हूँ, खुद को भी फ्लुएंट बनाया, अपने गांव में काफी सारे लोगों को फ्लुएंट बनाया। देन लाइक सो फार वी हैव ट्रेन्ड मोर देन 10,000 पीपल इन इंग्लिश, वी हैव मेड देम फ्लुएंट। नाउ द पॉइंट इज वेरी सिंपल। आपको पता है जब हम लोगों से बात करते हैं ना, चाहे वो कंपनीज के वाइस प्रेसिडेंट्स हो, बहुत ही बड़े बड़े लेवल के लोग हो, जो लोग इंग्लिश में ढंग से नहीं बोल पाते, आपको पता है सबसे बड़ी वो लोग गलती क्या करते हैं? कि उनको बात तो, कितने लोग ऐसे हैं कि तुम्हें बात तो बोलनी होती है प्रेजेंट की, तुम बोल देते हो पास्ट में। यस और नो? ये गलती है बहुत बड़ी, कि लगाना था डिड, लगा दिया डू। Yes or no? How many of you guys are able to face that particular problem? कि बात तो हमें करनी थी फ्यूचर की, बट मुंह से एंड हाथों से निकल गया प्रेजेंट। दैट इज द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप अगर लाइफ में कोई भी इंग्लिश या लैंग्वेज का सेंटेंस लिखना चाहते हो, तुम लोगों को सबसे पहले सेंटेंस कौन से वक्त का है वो पता होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है सेंटेंस प्रेजेंट में है और तुमने पास्ट में बोल दिया, तो तुम्हारी विकेट वहीं गिर गई। आया समझ में? I'm using these particular words like wicket गिर गई and all that because I think you guys will be able to connect with me in a better way. Yes or no? Now coming to the directly point. देखो यार, एक सिंपल सी चीज है, टाइम। अब मैं इसको समझाऊंगा नहीं, आपको ऑलरेडी पता है टाइम 3 तरीके का होता है, द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। सो द नंबर 1 थिंग विच यू ऑल शुड नो, कि तुम्हें सेंटेंस का, कोई भी सेंटेंस है, तुम्हें उसका वक्त पकड़ना आना चाहिए, राइट? ठीक है, सबको समझ में आया? कि इस दुनिया का तुम्हें कोई भी सेंटेंस बोलना है, इंग्लिश में, हिंदी में, मलयालम में, पंजाबी में, उर्दू में, तमिल में, तेलुगु में, किसी भी लैंग्वेज में बोलना है, होंगे तो वो 3 ही कैटेगरीज में से कोई एक ना, या तो पास्ट का होगा, या प्रेजेंट का होगा, या फ्यूचर का होगा। एग्री? यस और नो? अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो समझा रहा हूं वो समझो, आ जाएगा, ठीक है? सो कभी कभार स्टूडेंट्स अपना ज्यादा दिमाग लगाते हैं, अपना लॉस करते हैं। अभी तक क्या समझाया मैंने? इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लो, या तो प्रेजेंट का होगा, या पास्ट का होगा, या फ्यूचर का होगा। इतना समझ में आया? यस और नो? इतना आया ना समझ में? चलो अब मुझे बताओ, हम सब मिलकर कल, अभी आई एम नॉट ट्रेनिंग यू इंग्लिश, अभी अभी पहले तुम लैंग्वेज सीखो, इंग्लिश अपने आप आ जाएगी। देखो एक चीज और बताऊं, देखो तुम लोग जिंदगी भर ना क्या कर रहे हो, तुम लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हो। यही हो रहा है ना, इंग्लिश के पीछे भाग रहे हो, इंग्लिश उतनी पीछे भाग रही है। आपको पता है इंग्लिश किससे, किसके पीछे भागती है? इंग्लिश भागती है लैंग्वेज के पीछे। इन 2 दिनों में ना मैं तुम्हें यहां से उठा के यहां पे खड़ा कर दूंगा, ताकि अब इंग्लिश तुम्हारे पीछे। आया मजा? यस और नो? इजी है ना? इंग्लिश के पीछे मत भागो ना, लैंग्वेज के पीछे भागो। लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, मलयालम सब है, समझो ना? स्मार्ट, राइट? लूजर्स की तरह नहीं, विनर्स की तरह तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए। अब देखो, हम सब मिलकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखेंगे। फटाफट मुझे बताओ, इस सेंटेंस को पढ़ के तुम्हें फील क्या आ रही है? पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है? मुझे बताओ एवरीवन क्विकली। रजत चैट्स बॉक्स ओपन करो, चलो क्विकली गाइस, एवरीवन लेट मी नो। समवन इज सेइंग फ्यूचर। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको पास्ट की फील आ रही हो, प्रेजेंट की फील आ रही हो? मुझे बताओ। डन। समवन इज सेइंग पास्ट। देखा? अब जिसको भी इस सेंटेंस को पढ़ के पास्ट की फील आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो इंग्लिश भी गलत ही बोलेगा। सिंपल सी बात है, वो पास्ट का कुछ लगा देगा। इतना समझ में आया? ग्रेट, आप लोग सही हो। नेक्स्ट सेंटेंस क्विकली, सब लोग नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। तुम एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है? मुझे बताओ, गिव मी द आंसर्स। फील क्या आ रही है? अभी मेरे साथ चलो ना, जस्ट गिव मी द आंसर व्हाट आई एम आस्किंग। पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है? मुझे बताओ। समवन इज सेइंग फ्यूचर है, गलत। सब लोग पास्ट बोल रहे हैं, ग्रेट। द नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अभी अभी मुझे मेल भेजी है, पास्ट है, प्रेजेंट है, या फ्यूचर है?
सेंस क्या आ रही है, भाव को पकड़ो, वर्ड्स को मत पकड़ो, भाव को पकड़ो, भाव को। ओके, काफी सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट लिख रहे हैं, कुछ एक दो लोग पास भी लिख रहे हैं। ओके, देखो पहली चीज तो ये है कि अब अगर मैं ये चीज बोलता हूं ना कि उसने मुझे अभी अभी मेल भेजी है, फील क्या आ रही है कि इट इज काइंड ऑफ कंप्लीटेड इन प्रेजेंट ओनली ना, कि अभी अभी भेजी है, ऐसा था कि उसी टाइम भेजी थी, नो, इट गिव्स मी द फीलिंग ऑफ प्रेजेंट। अब एक दो बच्चे हैं वो मुझे थोड़ा बहुत परेशान करने के लिए, दे आर जस्ट टाइपिंग फ्यूचर एंड पास्ट, एक दो बच्चे दे आर टॉकिंग रबिश। सबको ये चीज तो समझ में आया ना, दिस इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू फ्यूचर, दिस इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू पास्ट एंड दिस इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस तुम्हें नहीं आ रहा, एटलीस्ट तुम्हें एक चीज तो पता लग जाएगी कि वो पास्ट का है, प्रेजेंट है या फ्यूचर का है। अभी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, जब पूरी चीजें सीख लोगे तब आपको इसकी वैल्यू पता लगेगी। अभी इतना समझ में आया, नाउ मूविंग अहेड। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं इस चीज को फटाफट कंप्लीट करूंगा। देखो, पहली चीज तो क्या पता होनी चाहिए कि हमें हर सेंटेंस का टाइम पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस मैं बोलने वाला हूं, ठीक है। अगर मैं नहीं बोल पा रहा या अगर मैं नहीं लिख पा रहा, तो वेदर इट वुड बी ऑफ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तब है जब आप फंस जाते हो, राइट। एंड अभी मैं ये रिटर्न ओरिएंटेड के लिए ही बता रहा हूं। मान लो तुम्हें कोई सेंटेंस लिखना है, तुम्हें नहीं आ रहा, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। नाउ मूविंग अहेड, अब आपको पता है हर सेंटेंस के ना तुम्हें फील समझ में आनी चाहिए। फील समझते हो, फील मतलब सेंस समझते हो। व्हाट इफ आई टेल यू कि एक तो हो गया टाइम, टाइम वाली बात, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दूसरी जो चीज है दैट इज रिलेटेड टू सेंस। मैंने बोला था ना टाइम एंड सेंस तुम्हें पता होना चाहिए। सेंस का मतलब क्या होता है, अच्छा कितने लोग ये वाला वर्ड समझते हैं कॉन्टिन्यूटी, कितने लोग कॉन्टिन्यूटी का वर्ड समझते हैं। कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी मीन्स होता है समथिंग लगातार, लगातार, समथिंग विच इज इन अ कॉन्टिन्यूअस वे। सबको लगातार वर्ड समझ में आ रहा है, ग्रेट। अब व्हाट इफ आई टेल यू कि इंग्लिश के ना बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको पढ़ के हमें फील क्या आएगी, रेगुलर वाली, फील क्या आएगी, लगातार वाली। लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इस सेंटेंस को पढ़ के फील क्या आ रही है कि हाँ यार ये तो मतलब कॉन्टिन्यूटी जैसा लग रहा है, यस और नो। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, क्या फील आ रही है, कॉन्टिन्यूटी की आ रही है ना, सी डॉट 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 कॉन्टिन्यूटी, यस और नो। सबको समझ में आ रहा है, समवन इज लेटिंग मी नो कि ये प्रेजेंट है। अभी मैं वक्त की बात नहीं कर रहा, वक्त की बात को हटा दो, अब मैं सेंस की बात कर रहा हूं। अभी हम दोनों को रिलेट भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। कुछ बच्चे इसको प्रेजेंट लिख रहे हैं, डोंट डू लाइक दिस वे। कुछ लोग इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिख रहे हैं। अभी मैं आपको टेंस पढ़ा ही नहीं रहा, अभी वो छोड़ो, वही बात है ना, बच्चे थोड़ा आगे चल रहे हैं, अभी मेरे साथ चलो, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट। सबको एक चीज समझ में आई कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, सी डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब मैं कल सोनू निगम के गाने सुन रहा था, देखा जाए दिस इज ऑल्सो द क्लियर केस ऑफ सी डॉट डॉट डॉट। बात पास की है तो क्या हो गया, है तो कॉन्टिन्यूटी, यस और नो। बात पास की है तो क्या हो गया, है तो कॉन्टिन्यूटी ना। कि मैं, अच्छा कितने लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है मुझे बताओ। रजत चैट बॉक्स ओपन कर दो, चैट बॉक्स इतने टाइम से बंद है, राइट। सबको लग रहा है वो अकेले अकेले पढ़ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, मुझे बताओ। डन, डन, हियर वी गो। इतना समझ में आया, अब चैट बॉक्स ओवर। तो अब व्हाट इफ आई टेल यू कि कुछ सेंटेंसेस को तुम पढ़ते हो तो तुम्हें फील क्या आएगी कि वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी का है। कुछ पढ़ते हो ना तो ऐसी आप लोगों को फील आएगी कि काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट मींस डन। फॉर एग्जांपल, इफ आई से मैं आपको इंग्लिश पढ़ा चुका हूं, क्या फील आ रही है कि काम हो चुका है। अभी हो रहा है क्या, नहीं, पढ़ा चुका हूं, खत्म, टाटा बाय बाय, राहुल गांधी, राइट। ओके, यू गाइस गॉट इट, राइट। अब जैसे मैं बोलूं कि मैं सलमान खान की मूवी देख चुका था, राइट, मैं सलमान खान की मूवी देख चुका था, भले ही बात पास की हो रही है, but it's not giving me the it is not giving me the vibes or the sense of continuity. It is giving me the vibes of completion कि भाई कंप्लीट हो चुका है, yes or no। इतना सबको समझ में आया। now moving ahead, आपको पता है कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे ना वो कॉन्टिन्यूटी की फील देंगे ना वो कंप्लीटेड की फील देंगे, वो फील देंगे बड़ी सिंपल सी। एंड कुछ सेंटेंसेस होते हैं सिंपल, जैसे मैं बोलूं मैं एक इंग्लिश फ्लुएंसी कोच हूं, क्या ये कॉन्टिन्यूटी की फील दे रहा है, नहीं। क्या ये कंप्लीटेड की फील दे रहा है, नहीं। ये फील दे रहा है सिंपल की। आया समझ में इतना। और यही है, आधे लोग
जब इंग्लिश में सेंटेंसेस गलत बनाते हैं वो यही बनाते हैं, कंप्लीटेड में कॉन्टिन्यूटी लगा देंगे, कॉन्टिन्यूटी में सिंपल लगा देंगे, टाइम में पास का प्रेजेंट लगा देंगे, तो सेंटेंस गलत बनता है और फिर कहते हैं कि हमारी ग्रामर वीक है इसलिए हम सही नहीं है। तुम्हारी ग्रामर वीक नहीं है, तुमने सेंटेंस का टाइम एंड सेंस को पकड़ने में गलती की है। आया समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव दिस लाइन? ग्रामर कभी किसी की वीक नहीं होती बॉस। ग्रामर इज क्या? रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अब कौन पढ़ता है? तुम लोग अभी भी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हो क्या? तुम में से कितने लोग सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी भी? भाई क्यों पढ़ रहे हो? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कितने लोग अभी भी पढ़ रहे हैं? वो जो हम एक ट्रेनर आएगा वो ऐसे पढ़ाएगा, ओके टेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ना ना ना, सो सॉरी, मेरे नोट्स कहाँ गए इंग्लिश के? ओके हाथों में ही लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तुम ऐसे तो नहीं पढ़ रहे ना भाई? ऐसे पढ़ रहे हो ना तो प्लीज बंद कर दो यार। हम 5 साल पहले पढ़ाते थे ऐसे, अब तुम इंग्लिश ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है। कौन लोग सब्जेक्ट, तुम में से सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट तुम याद करते हो क्या? मत करो ना, राइट? ठीक है, प्लीज। सर ऐसे ही पढ़ते हैं, तुम लोग ऐसे पढ़ रहे हो। हम तो 5 सालों से इसके बिना पढ़ा रहे हैं। और तुम्हें भी, आप देखना कल जो मैं रिजल्ट्स दूंगा, कल तुम सेंटेंस जो लिखोगे इसके बिना लिखोगे। ये कौन पढ़ रहा है इसको? अगर तुम्हारी ये नोटबुक में है ना, आई एम सो सॉरी, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, कि ज्ञान जो हमारे काम का नहीं वो ज्ञान नहीं, समझना। जो ज्ञान हमारे काम का नहीं वो किसी काम का नहीं ना। द पॉइंट इज, जब तुम बोलते हो, जब तुम लिखते हो, क्या तुम सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हो, सोचते हो? तो नहीं सोचते तो क्यों पढ़ रहे हो? इसको फाड़ दो भाई, राइट? दिस इज यूजलेस। मैंने भी अपने बचपन में बहुत टाइम इससे वेस्ट किया, कौन करता है आजकल ऐसे? दिस इज यूजलेस टोटली। मतलब मैं तो एक भी बारी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं करता, राइट? पर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको इंग्लिश पढ़ा देंगे, दे आर दैट स्मार्ट। ओके चलो, हियर वी गो नाउ, मूविंग अहेड। अपना इधर तक समझ में आया? ठीक है, सबको ये चीज समझ में आई कि इस दुनिया का तुम कोई भी सेंटेंस उठा लो, या तो वो सिंपल का होगा, कॉन्टिन्यूटी का होगा, या कंप्लीटेड का होगा। मतलब एस स्टैंड्स फॉर सिंपल, सी डॉट डॉट स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड सी डॉट। मतलब मैं इतना बड़ा सिंपल लिखूंगा नहीं, मैं एस लिख दूंगा, तो तुम लोग समझ जाना है ना। अगर मैंने लिख दिया कोई सेंटेंस सी डॉट डॉट है, समझ जाओगे ना कॉन्टिन्यूटी का है। ठीक है, इतना तो समझ जाओगे ना, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपको पता है सबसे मजेदार बात पता है क्या है? यू गाइज आर गोइंग टू बी लविंग इट। देखो, जब भी तुम इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस बोलोगे या लिखोगे ना, सबसे पहले तुम्हें उस सेंटेंस का टाइम पता होना चाहिए कि वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। इन तीनों में से कोई एक ही होगा। सिंपल सी बात ये है, यस और नो, या तो पास्ट को। कोई ऐसा सेंटेंस है क्या जो प्रेजेंट का भी हो, पास्ट का भी हो, फ्यूचर को? इट वोंट बी लाइक दैट। ठीक है, द सेकेंड थिंग ये है फिल्टर नंबर 1। आपको पता होना चाहिए, अगर तुमने कोई सेंटेंस गलत किया तो पता होना चाहिए गलती हुई कहां। टाइम में हुई, सेंस में हुई, टी टेक्निक में हुई, फॉर्मेशन शीट में हुई, दिक्कत हुई कहां। जब तक हम अपनी गलती को नहीं पकड़ेंगे, हम इंप्रूव नहीं कर सकते। ये नहीं होता मैं एक सेंटेंस करना चाहता हूं, मैं नहीं कर पाया, ओ मेरी ग्रामर वीक है। दिस इज फुलिश। हमें पता होना चाहिए कि क्या वीक है। टाइम की गलती हुई, सेंस की गलती हुई, कोई मैंने कंसेप्ट गलत लगा दिया। यू शुड बी यू शुड बी हैविंग अ डिटेल्ड माइंडसेट। सिंपल। नाउ इतना समझ में आया ना? या तो सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का होगा, या सिंपल कॉन्टिन्यूटी कंप्लीटेड का होगा। अब मजेदार बात पता है क्या? कि इस दुनिया का तुम कोई भी सेंटेंस उठा लो, सब में तुम्हें ये वाली ऑलमोस्ट वाइब आई जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं बोलूं, मैं आपको पढ़ा रहा था, सबसे पहले मैं इसके टाइम की बात करूंगा। क्या टाइम है मुझे बताओ? मैं आपको पढ़ा रहा था, किस टाइम की फील दे रहा है मुझे बताओ? पास्ट की दे रहा है, प्रेजेंट की दे रहा है, फ्यूचर की दे रहा है? मुझे बताओ। नहीं यार, प्रेजेंट की दे रहा है। नहीं 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 यार, ये तो प्रेजेंट की दे रहा है। पास्ट की दे रहा है क्या? मुझे बताओ। लाइक इज इट गिविंग ऑफ प्रेजेंट और पास्ट? लेट मी नो। प्रेजेंट की दे रहा है यार। तुम यार टीचर की बात नहीं मान रहे, प्रेजेंट की दे रहा है। प्रेजेंट की दे रहा है गाइस। अभी भी नहीं, अभी भी पास्ट। समझ में आया? जब राइट नॉलेज दिमाग में घुसती है ना, जब वाटर टैंक में राइट वाटर ढूंढ घुसता है, तो टीचर भी अगर गलत बोल रहा हो ना, तो हम सही पे अटके रहते हैं। दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आई वॉन्ट इन यू, इन एवरी सेंटेंस यू राइट। आया मजा? मैं बोल रहा था प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है, तुम लोग अटके रहे ना, लाइक उधर ही अटके हैं। नहीं, पास्ट है, पास्ट है, पास्ट है। इट मीन्स यू गाइज आर गेटिंग द क्लैरिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
राइट। एंड यही श्योरिटी हर चीज में होनी चाहिए। हम डाउटफुल रहते हैं, शुड हैव लगाऊं, शुड हैव बीन लगाऊं, शुड हैव बीन कोड लगाऊं। दिस इज नॉट द वे। यू नीड टू बी लर्निंग एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। सो एक सिंपल सी बात ये है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये पास्ट की कैटेगरी का है, ठीक है। अभी तक इतना हमें समझ में आया, टाइम सही है। अब पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में कौन सी कैटेगरी का है ये? सिंपल का है, क्योंकि अब पास्ट का है मतलब पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में से कोई एक होगा। तो प्रेजेंट तो नहीं है, फ्यूचर तो नहीं है, पास्ट है। अब पास्ट में से सिंपल का है, कॉन्टिन्यूटी है, कंप्लीटेड है? मुझे बताओ। ऑब्वियसली इट्स कॉन्टिन्यूटी। सो हियर यू गो, यू गाइस गॉट द आंसर ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर 1 घंटे के काइंड ऑफ सेशन में तुम लोगों को इंग्लिश अस्त्रा, टाइम, फ्लुएंसी का मीनिंग प्लस इतनी सारी चीजें बताने के बाद तुम लोगों को टाइम एंड सेंस भी समझ में आ गया। अब पर देखा जाए, अभी तो तुम्हें टाइम एंड सेंस समझ में आ गया, क्या तुम इंग्लिश लिखने लग गए हो? द आंसर इज नो। वो कल जब तुम आओगे, तुम स्टार्टिंग के 15 मिनट में इंग्लिश लिखने लग जाओगे, सारे सेंटेंसेस नहीं, बट अराउंड आप 20 to 30% लैंग्वेज के सारे सेंटेंसेस लिखने लग जाओगे। एक्साइटेड? क्योंकि अब अभी तक हमने क्या किया, हम लोगों को किसी भी सेंटेंस का टाइम एंड सेंस पकड़ में आ गया ना। ये दो चीजें समझ में आ गई। अब जब भी हमें कोई सेंटेंस दिखेगा ना, हम लोग क्या करेंगे, टी टेक्निक लगाएंगे, टी टेक्निक के बाद टाइम एंड सेंस लगाएंगे, फिर एक फॉर्मेशन शीट में आपको दे दूंगा, ठीक है। वो फॉर्मेशन शीट से आपका सेंटेंस बन जाएगा। सिंपल सिंपल। समवन इज सेइंग कि सर सी डॉट डॉट कैसे पता करें? अरे बहुत सिंपल है ना। पता नहीं करना, ये फील आती है कि आपको मैं पढ़ा रहा था मींस की बात भले ही पास की हो रही है पर कॉन्टिन्यूटी थी। हाँ, पढ़ा रहा था मतलब उस टाइम पे सम एक्शन वाज गोइंग ऑन। ये फील की बात है। लैंग्वेज इज ऑल अबाउट भाव। यस और नो? सबको ये चीज समझ में आई? ठीक है, सबको ये चीज समझ में आई। सो टुमारो वी विल बी डूइंग दिस पर्टिकुलर डी टेक्निक एंड हम ये फॉर्मेशन शीट को काइंड ऑफ समझेंगे। एंड ये तीनों चीजों समझने के बाद वी गोना डू, आप लोग सेंटेंसेस करने लग जाओगे एंड आगे की जर्नी वी गोना लेट यू नो। ठीक है, हियर वी गो। सबको ये चीज समझ में आई है? एंड कल कितने लोग एक्साइटेड है डी टेक्निक के लिए? मुझे बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एक्साइटेड फॉर दिस वंडरफुल डी टेक्निक? गाइस इसको मिस मत करना, इसको मिस मत करना, क्योंकि डी टेक्निक के आते ही तुम्हें पता लगेगा वो रहस्य कि सेंटेंस स्टार्ट कैसे होता है एंड फॉर्मेशन शीट आपके सेंटेंस को खत्म करेगी। सो आया ना समझ में? डी टेक्निक से आपको पता लगेगा हाउ टू स्टार्ट अ सेंटेंस, फॉर्मेशन शीट से पता लगेगा हाउ टू फिनिश अ सेंटेंस। एंड आज मैंने ये जो बीच की एक चीज थी, लाइक हाउ टू लाइक कंस्ट्रक्ट काइंड ऑफ दैट, तो मैंने वो बता दी। तो कल हम स्टार्ट एंड फिनिश पढ़ लेंगे। बीच का तो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट, राइट? कल की टाइमिंग्स इट वुड बी शार्प 6:45 PM। डन? सबको ये चीज समझ में आई है? एंड कल हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर लाइक कमिंग एट 6:45 PM? एंड एक चीज और है, ठीक है, एक चीज और है, होमवर्क करके आओगे? मुझे बताओ, कुछ होमवर्क दूं थोड़ा सा, समझोगे? करके आओगे? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर गोइंग टू डू दी होमवर्क? लेट मी नो। चलो तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, ज्यादा नहीं है, 1 घंटे का होमवर्क है, ठीक है? करके आओगे पक्का? ऐसा नहीं है कि होमवर्क करोगे तभी कल का सेशन समझ में आएगा। दैट इज एन एडिशनल थिंग, बिकॉज एक सिंपल सी बात ये है गाइस कि अगर इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो उसमें किसका लॉस है, मेरा आपका? मतलब मुझे तो नहीं होना फ्लुएंट में। इट्स लाइक वी हैव टू मेक यू गाइस फ्लुएंट इन इंग्लिश। यार देखो, एक सिंपल सी बात ये होती है कि आप लोगों को जब भी, लेट्स सपोज कि हम सब लोगों को शिमला जाना है, लेट मी नो, ठीक है? द पॉइंट इज हम सब लोगों को शिमला जाना है, तो क्या हम लोग शिमला का रास्ता पता करते हैं? नो। हम लोग सिर्फ फ्लाइट या फिर बस या फिर ट्रेन बुक करते हैं। यस और नो? है ना? क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे ड्राइवर को पता होना चाहिए। आया? राइट? समझ में आया ना? तो what if I tell you that you are riding into the new world of spoken English and I am probably that particular driver of that particular bus. So you need to trust it. आप बस बैठो, मैं आपको जो बता रहा हूं आप वो लोग करो and things are going to be fine. आया मजा? कितने लोगों को पता लगा कि यार अगर हम ऐसे सीखें चीजों को तो इट्स नॉट टफ यार। मैं कल जब आप लोगों से सेंटेंसेस बनवाऊंगा आपको खुद पता लगेगा। मैं सेंटेंसेस कल 2 ही बनाऊंगा, उसके बाद तुम लोग बनाओगे। एंड सिर्फ बनाओगे नहीं, सही बनाओगे। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कल अपने लाइफ का पहला ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखेंगे?
बिकॉज आप स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हो। समझो इस चीज को, ठीक है। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देना चाहता हूं। देखो, आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जो अपने टेक्स्ट एंड रिटर्न में अगर परेशान हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना एक करेक्ट करने का एक चीज और देखनी है। जैसे जो मैंने आज पढ़ाया वो भी आपको रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक ये सेशन देखना है, प्लस ऑडियो एंड वीडियो का एक ये स्पीकिंग का एक सेशन है, ये देख के आना है। अब एक क्वेश्चन ये है कि ये करेक्ट का एंड स्पीकिंग का सेशन आपको मिलेगा कैसे, ठीक है। ठीक है, मिलेगा कैसे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं, गिव मी वन क्विक मिनट, एक सेकेंड। मैं आपको लिंक ओपन करके दे देता हूं, लिंक भी दे दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। हियर वी गो। सो गिव मी अ क्विक मिनट। कितने लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है मुझे बताओ, कितने लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? लेट मी नो। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? देखो, ये अभी जूम खुला हुआ है, लेट मी ओपन अप द लिंक। देखो, मैं आप लोगों को ना एक लिंक सेंड कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला लिंक है, ये डे 1 का आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। द पॉइंट इज, जितने भी लोग अभी अपनी इंग्लिश में करेक्ट नहीं है, सबको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इधर देखो, जितने भी लोग अभी अपनी इंग्लिश में करेक्ट नहीं है ना, उनको ना ये काइंड ऑफ एक ये होमवर्क देख के आना है, ठीक है। ये 1 घंटा 1 मिनट का है, देख के आओगे। एंड मुझे पता है, आपको पता है एक चीज ये भी है कि पहले वी यूज, अगर आप में से किसी ने इस पर्टिकुलर इवेंट को पहले भी अटेंड किया हुआ है, पहले हम ये होमवर्क का चार्ज करते थे अराउंड 500-600, लोग आराम से पे भी करते थे। पर द पॉइंट इज, इस बारी पहली बारी ऐसा हो रहा है कि वी आर गिविंग दिस पर्टिकुलर होमवर्क फॉर एब्सोल्युटली फ्री। और मुझे ये भी बात पता है कि एज इट इज फ्री ना, तो तुम में से आधे लोग इसको देखेंगे नहीं, मुझे पता है। आपको पता है, तुम में से 70% लोग इस लिंक को देखेंगे नहीं, क्योंकि फ्री है, और फ्री की वैल्यू क्या होती है? 0। सिंपल सी बात है। द पॉइंट इज, पर जितने भी 30% लोग देखेंगे ना, मैं कल सेशन उन्हीं के लिए ही लूंगा। हाउ हाउ अबाउट इट? क्योंकि वी, बिकॉज आई वॉन्ट कि यार मैं भी किसी का टाइम वेस्ट ना करूं, कोई मेरा भी टाइम वेस्ट ना करे। लिंक आ जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी। अभी मैंने लिंक नहीं भेजा। गाइस, डोंट बी हाइपर एक्टिव इन लाइफ, ठीक है। लिंक कहां से मिलेगा? लिंक अभी मिलेगा, अभी सेंड करूंगा, पहले समझ तो लो। लिंक की बात की तो लिंक 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 करने लग गए। रिलैक्स, हियर वी गो, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो, हियर वी गो, लिंक आ रहा है ऑब्वियसली। अगर मैं आपको लिंक के बारे में बता रहा हूं, तो ये भी बताऊंगा कि लिंक कैसे मिलेगा। व्हाई यू गाइस आर सो हाइपर इन लाइफ? रिलैक्स, टेक अ डीप, टेक अ टेक अ टेक अ डीप ब्रेथ, राइट, ठीक है। ब्रीथ डीप, ओके। चलो, पहले समझ लो। तुम लोग अगर नहीं, समवन इज सेइंग कि सेंड इट इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। नो, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत, चलो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। बट आप अभी समझ तो लो क्या करके आना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, अगर तुम लोग अभी अपनी इंग्लिश में करेक्ट नहीं हो ना, तो तुम्हें ये 1 घंटा 1 मिनट का होमवर्क करके आना है। डन? समझ में आया? बहुत ही सिंपल सी चीज है। एंड अगर तुम इंग्लिश में करेक्ट हो और तुम्हें क्विक एंड कॉन्फिडेंट होना है, तो तुम लोग ये सेशन भी करके आओगे। ये देखो, पानी की टंकी भर रही है। गॉट इट? ये वाला सेशन आप देख के आओगे, आया? और ये सेशन सिर्फ 30 मिनट्स का है, तो दोनों भी देख के आ सकते हो। क्या आपको इस होमवर्क से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? नहीं, बट काफी हद तक तुम्हें कुछ चीजें क्लियर होंगी इंग्लिश के बारे में, ठीक है। बेनिफिट तो मिलेगा ही, आज के सेशन में भी आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा, कल भी आप आओगे। जिसको इंप्रूवमेंट अपने अंदर चाहिए, लाइक गिव मी वन क्विक मिनट, लेट मी चेंज द बैटरी ऑफ माय कैमरा, ठीक है। रजत, एक बारी आप सब लोगों को लिंक भी यहाँ पे भी सेंड कर दो, यहाँ पे भी सेंड कर दो एवरीवन, ठीक है। मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, मिल रहा है, ठीक है। या वी गोना सेंड द, प्लीज शेयर द लिंक ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। सो दैट इज, आप तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही होंगे, तभी तो आप आए होंगे, ठीक है। सो वी आर सेंड दिस पर्टिकुलर लिंक, ठीक है। सो आप लोगों को हमने लिंक सेंड कर दिया है, एंड ग्रुप में भी सेंड कर देंगे। सब लोगों को होमवर्क पता लग गया, दोनों करके आने, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लेट मी नो, आज का सेशन कैसा था मुझे बताओगे आप? अभी नहीं, अभी हम इस पर्टिकुलर सेशन को, बिकॉज आई हैव वन क्लास एट 8:30, सो आई बी टेकिंग 5 मिनट्स ब्रेक। एंड जो हमारे एलीट टॉकर्स के कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उन लोगों के लिए मुझे क्लास लेनी है, राइट। एंड कल मैं आप लोगों को भी मौका दूंगा टू बिकम
right, to become the part of our Elite Talkers family, right? जिसको भी इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है, you guys can become. Now the point is, कल आपको अभी नहीं लिखना वंडरफुल, अभी मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? उस वीडियो के नीचे आपको लिखना है, ताकि जो लोग नहीं आए उनको पता लगना चाहिए कि हाउ मच वंडरफुल सेशन दे हैव मिस्ड. यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर गोइंग टू बी डूइंग इट ऑन व्हाट्सएप? लेट मी नो. कितने लोग व्हाट्सएप पे करेंगे जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, जस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ माइंड क्लैरिटी? लेट मी नो. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर डूइंग इट? जिनको जिनको सच में इंपैक्ट लगा है वो आप लोग प्लीज करेंगे, सब लोग करेंगे सर जी. दैट्स वंडरफुल. सो गाइस अभी मैं चलता हूं, आई हैव वन क्लास एट 8:30 PM. एंड आप लोग क्या करो, अभी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा. एंड कल गाइस मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की हुई हैं. टुमारो इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर सेशंस. हमें बहुत सारी चीजें कवर अप करनी है. सेंस अप्रोच, टी टेक्निक एंड इवन ESP, क्रिकेटर्स एंड एक्टर्स का सीक्रेट, बहुत सारी चीजें करनी है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर गोइंग टू बी कमिंग शार्प? At what time? Give me a minute. Give me a minute. I'll see you sharp at 6:45 PM, guys. Bye bye. Take care. जय सरस्वती माँ guys. Bye bye. Take care. Recording का लिंक नहीं मिलेगा, right? So the point is, जो लोगों like we will send it. अगर होगा तो we will send it in the group. Bye bye guys. Take care. Thank you.